evening, everyone. Welcome to all of you to the sixth day of this 7-day faculty development program on innovative practices in research, publishing, and patent filing for academic growth. This program is jointly being organized by Rabindranath Tagore University, Bhopal, Guru Gorakhnath Ji Government College, Hisar, Vital Biotech, and Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota. So, on the behalf of organizers, I once again welcome you all and thank you for being such a wonderful and attentive audience and being interactive during this entire session. So firstly about the organizers. So Dr. Rabindranath Tagore University, this is the first private university of Madhya Pradesh. It was established in 2010. It is a skill-based institution in central India. It was founded by renowned education and skill group AISECT, and university is NAAC accredited and has been ranked among the top 200 universities by NIRF for 5 consecutive years from 2019 to 2023. It offers programs across various faculties like engineering, education, management, law, arts, science, commerce, agriculture, and medical sciences. It is well recognized by UGC and is a member of AIU, ACU, and University Institute also hold approval from bodies like AICTE, NCTE, BCI, IMC, and Paramedical Council of Madhya Pradesh. So the university has a strong emphasis on research and it has 17 Center of Excellence in diverse domains, including incubation, startups, advanced material, IoT innovation, environmental science, and indigenous knowledge studies. The center has contributed to the overall growth of the university, and this university has 1,500 research papers and 300 books authored by its faculty and scholar in its account. This university is also undertaking research projects in collaboration with DRDO, NCTU Taiwan, IIT Delhi, and Biodiversity Board of Government of Madhya Pradesh, and many more. And the Guru Gorakhnath Ji Government College Hisar is also a very reputed institution under the government of Haryana. It was established in 1950 and it is accredited with a B plus grade by NAAC. And it is affiliated with the Guru Jambeshwar University of Science and Technology. The college features spacious classroom, advanced lab, and a two-story library with an e-resource center. And it is committed to the holistic development, empowering students with knowledge, skill, and leadership qualities needed to thrive in and contribute to the society. And Vital Biotech is one of the India's premier and it is focused on addressing the challenges of giant food agriculture which we are currently facing. And it is actively engaged in microbiology and biotechnological solution. It is highly respected in both state and state communities. So the institution emphasizes on publishing progressive peer-reviewed research in high-quality journals. And the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, it functions as a bridge between the rural communities and stakeholders like government bodies, development organization, and corporate entities. It is a national level professional organization that provides a collaborative platform for professional educators, researchers, and students, both within India and abroad. So I would like to congratulate once again all the organizers and organizing committee for bringing us together and for organizing this enriching FDP program. So, dear participants, today's esteemed speaker is Dr. Nirja Srivastava, and Madam has already joined us. So, Madam is as a professor in the Department of Botany at Government PG College, Kota. She brings with her over 25 years of experience in both teaching and research. Throughout her distinguished career, she has supervised more than 50 PhD and 7 MPhil scholars. Dr. Srivastava has led several research projects which were funded by UG's Department of Science and Technology, spanning diverse areas of microbiology and plant sciences. She has published more than 45 research papers and articles in journals of national and international repute. She is author of 12 books in the field of microbiology and plant sciences. Madam is recognized counselor for both Vardhaman Mahavir Open University, Kota, and IGNOU, which is Indira Gandhi National Open University, New Delhi. So her dedication and excellence in education have earned her the Best Teacher Award from the Department of Higher Education, Government of Rajasthan, as well as the Best Women Scientist Award from the Department of Science and Technology, Rajasthan. So Madam is also serving as an innovation ambassador under the Institute Innovation Council, Government of India. So Madam,
today we are truly honored to have you with us, and I welcome you. And I request you to kindly address our audience and impart some knowledge to them. So, over to you, ma'am. Thank you, Imani. First of all, I would like to thank organized authorities, which includes Vital Biotech, which give me an opportunity to interact with all the faculty members all over India. So thank you once again. Shall I start my Yes, presentation? ma'am. It is visible or not? Yes, ma'am. It's visible, but please put it on slideshow mode. Yes. Now it's okay. Yeah, Yes, it's fine, ma'am. Should I start? Yes, ma'am. So आई थिंक दो सेशन आपके आईपीआर पर हो चुके हैं कल। तो कोशिश करूंगी मैं कि हिंदी में हम इंटरेक्ट करें प्रॉपरली, लेकिन हो सकता है कुछ टेक्निकल टर्म्स है या कुछ ऐसी चीज है तो वो इंग्लिश में मैं कम्युनिकेट करूँ और उसको हिंदी में मतलब हमारा अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से हो सके और कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर हो सके, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपी के जितने भी टूल्स है, ऑल द टूल्स इंक्लूडिंग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट आर इन द नेचर दे आर वेरी टेक्निकल। सो बहुत टेक्निकल थोड़ा सा ये जो है सब्जेक्ट हमारा हो जाता है। तो कोशिश करूंगी मैं कि इसको हम इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें, और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप थोड़ा सा अगर कहीं से भी कुछ लगता है तो चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, तो हम उसको क्वेरी को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट if I, because you already attend to technical session related to IPR, so this is the slide which includes that if you don't see a problem with the question, you need this class. Why हमें इस क्लास की जरूरत क्यों है, इस सेशन की जरूरत क्यों है? आई वॉन्ट टू आस्क सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैन आई पेटेंट माई कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क? आप अपना आंसर लिख सकते हैं या अपना जो है अपने आप को म्यूट करके बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेटेंट है तो क्या मैं उसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क करा सकता हूँ? एनीवन वांट टू गिव? Participants can write their answers in chat box. अगर मेरे पास कोई पेटेंट है, मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन कर देती हूँ कि इफ आई हैव पेटेंट, अगर मेरे पास कोई पेटेंट है तो मैं उसका कॉपीराइट कराऊंगी या ट्रेडमार्क कराऊंगी या कराऊंगा? एनीवन हैज आंसर? Participants are responding in chat box. ओके, एक्चुअली ये Yes. म्यूट है मैम। बाद में इनको जब आपका लेक्चर अच्छा, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अनम्यूट किया जाएगा। ठीक है ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं चैट बॉक्स में आई विल चेक। अगर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क है तो क्या हम पेटेंट करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि तीनों टर्म बिल्कुल अलग है। तीनों जो है वो आईपीआर के टूल है। पेटेंट एक अलग टूल है, कॉपीराइट एक अलग टूल है और ट्रेडमार्क एक अलग टूल है। तो इसमें हम आज जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, तो हम उस आइडिया और इनोवेशन को जो है क्या कराएंगे, पेटेंट कराएंगे, कॉपीराइट कराएंगे या ट्रेडमार्क कराएंगे, या हमारा कोई ऐसा ट्रेड सीक्रेट है जिसको कि हम करना चाहेंगे। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी से आपस में बातचीत करना चाहेंगे। तो आईपीआर इंडिया में जो है अलग अलग तरीके के हैं। एक बार यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया में है वो इंडिया के अपने हैं। अगर आप कहीं कॉपीराइट या ट्रेडमार्क या ट्रेड सीक्रेट कराना चाहते हैं या पेटेंट कराना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो आपको उन कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो आज हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं।
अगर आपको मान लो आपने कोई पेटेंट ले लिया आपने या कोई ट्रेडमार्क करा लिया, तो अगर आप इंडिया का कोई ट्रेडमार्क फॉरेन में भी कराना चाहते हैं उसको रजिस्टर, तो आपको वहां के नियमानुसार या वहां के लॉज के अकॉर्डिंग जो है आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो आईपीआर है वो एक आपको पेटेंट हमको सबको पता है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, प्लांट ब्रीडर्स राइट है, यूटिलिटी मोल्ड मॉडल्स है, डिजाइन है, और जीआई है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, और ट्रेड सीक्रेट है। तो यहाँ पर आज मैं जो है थोड़ा डिटेल में ट्रेडमार्क कॉपीराइट की बात करूंगी, अगर हमारे पास टाइम होगा तो वी आर गोइंग फॉर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो कॉपीराइट सबसे पहले हम बात करेंगे। कॉपीराइट का सिंबल, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो किताबें हम रेगुलर पढ़ते भी हैं, अपने स्टूडेंट को भी सजेस्ट करते हैं। तो ये एक कॉपीराइट सिंबल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में हम सब इससे परिचित है, इस सिंबल से, कि एक सी लिखा हुआ है और सी के आसपास जो है एक सर्कल सा बना हुआ रहता है। कोई भी हम बुक का पेज खोलेंगे तो उस तरह का सिंबल हमें वहां पर दिखाई देगा। एक जो जब हम बुक खोलते हैं तो इस तरह का आपको ये दिखाई देता है। जैसे ही हम किताब खोलेंगे तो इस तरह का वर्गों पेज नजर आता है, वर्सों पेज, ये आपको दिख रहा होगा। इससे पहले हो सकता है आप इस नाम से परिचित नहीं हो, ये वर्सों पेज कहलाता है, जिस पर कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉपीराइट सिंबल होता है। और जिस ईयर में बुक पब्लिश हो रही है, जैसे 1999 है तो ईयर लिखा रहता है, और जो भी राइटर का नाम है वो लिखा रहता है। तो यहाँ पर इस वर्सो पेज में ये वाली चीज होती है इस वाली साइड पर, और इस वाली साइड पर आगे कुछ भी हो सकता है, कंटेंट हो सकते हैं, या बुक का जो भी फॉर्मेट है वो हो सकता है। यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो हर बुक पर ये लिखा हुआ रहता है, ऑल राइट्स रिजर्व इंक्लूडिंग द राइट ऑफ रिप्रोडक्शन इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फॉर्म। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, कई बार ये राइट पब्लिशर के पास होते हैं और कई बार ये राइट ऑथर के पास होते हैं। दो चीजें होती हैं, क्योंकि हम और आप किताबें लिखते रहते हैं, पेपर्स लिखते रहते हैं, तो ये जो कॉपीराइट के नियम है या जो रूल्स है वो हमें पता होने चाहिए कि हमें क्या करना है। अब मान लो जैसे कि अगर आप इसके में आपका जो किस तरह के इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं उसको मैं आगे आपको एग्जांपल से बताऊंगी। यहाँ पर आप इतना देखें कि जब कभी भी हम कोई बुक लिखें, या मान लो कोई पेपर भी हम लिख रहे हैं, तो पेपर में तो हमने क्योंकि जर्नल को दे दिया तो अब राइट उसके पास चले गए। जर्नल्स के पास जब हम बेचते हैं तो सारे राइट्स जो होते हैं उनके पास हो जाते हैं। लाइबिलिटी भले ही ऑथर की रहती है, लेकिन उसको सेल करने के, रीसेल करने के राइट्स जो है वो जर्नल के जो पब्लिशर्स हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन बुक में आप दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम पूरे राइट्स अपने पास रख लें, पब्लिशर को कोई राइट ना दे, या हम कर सकते हैं कि पब्लिशर को पूरे राइट ले लें और हम पैसा ले लें। ये दो तरह की चीजें होती है, डिपेंड करता है कि ऑथर की वेटेज कितना है। अगर कोई ऑथर है जो बहुत वेल रिकॉग्नाइज्ड है तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करता है। लेकिन अगर कोई ऑथर ऐसा है जो कि वेल रिकॉग्नाइज नहीं है, पब्लिशर बहुत रिनाउंड है, जैसे कि मान लो हम जो है किसी भी स्कोपस पब्लिक की लिस्ट के किसी भी पब्लिकेशन की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो है ज्यादा वेटेज किसका है, पब्लिशर का है। तो पब्लिशर अपनी कंडीशंस पर ऑथर को मतलब काम कराते हैं कि ऑथर से राइट्स ले लेते हैं, और ऑथर्स को जो भी पेमेंट करना है नहीं करना है ये उनका आपस का डिस्कशन का मैटर होता है। लेकिन ये जो है कॉपीराइट सिंबल ये डिनोट करता है कि इस बुक के कॉपीराइट या तो पब्लिशर के पास है या राइटर के पास है। तो जब भी आप कोई किताब खोलें या आप अपने स्टूडेंट्स को भी बताएं तो इस चीज को जरूर बताएं कि जब भी आप बुक खोल के इस तरह से देखें, और राइटर और कॉपीराइट सिंबल एक्चुअल में हमें हर अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, मेरे को 25 ईयर्स टीचिंग के हो गए, लेकिन कई बच्चे जो है अभी भी इस कॉपीराइट सिंबल को नहीं पहचानते हैं। तो एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी मेंबर, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसे जो है इसके बारे में बताएं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्सो पेज, जो कि कॉपीराइट का सिंबल है, और इसके बारे में कहाँ क्या इंफॉर्मेशन होती है वो इस पेज पर बहुत ज्यादा क्लियर कट लिखी रहती है। अब ये देखिए, आप कॉपीराइट सिंबल मैंने एक्सप्लेन करा है। अब होता क्या है कॉपीराइट सिंबल? This is the abbreviation of COPR, the year of the first publication of copyrighted work, यानी कि पहले, वो सबसे पहले जो है वो कब पब्लिश हुई उसकी जानकारी हमें देता है। और एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट, जो आइडेंटिफिकेशन देता है कि इसके कॉपीराइट्स किस पे पास है, नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो कॉपीराइट का मतलब है कि इसके राइट्स किसी ना किसी के पास है, और अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम रिसर्च भी करते हैं,
जब रिसर्च हम करते हैं तो कुछ मटेरियल हम कहीं से लेते भी हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कम्युनिकेट किससे करना चाहिए। कम्युनिकेट हमें राइटर से करना है या हमें पब्लिशर से करना है, ये हमें पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कोई पेपर लिख रहे हैं, कहीं से हमने कोई मटेरियल लिया, तो हम इस संदेह में आ जाते हैं या इस कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम परमिशन किससे लें। तो ये जो कॉपीराइट का सिंबल है बुक पे या पेपर पर या जर्नल पर, तो वहां ये क्लियर कट लिखा रहता है कि आप किससे कम्युनिकेट करें और किसकी कंसर्न आपको लेनी है। तो ये कॉपीराइट के सिंबल के बारे में जानकारी है। अब कॉपीराइट इंडिया में बहुत पुराना कह सकते हैं हम, जब ब्रिटिश रूलर्स थे तब 1847 में जो है ये कॉपीराइट को जो है सबसे पहले कॉपीराइट शब्द काम में आया था। और इन 1847 द टर्म कॉपीराइट वाज द फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 70 years, एंड उसकी जैसे मतलब लाइफ टाइम उसको दिया जाता है किसी भी ऑथर को, और जब ऑथर की डेथ हो जाती है तो 70 साल उसके फैमिली मेंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई बुक लिखी, तो मेरी राइट उस किताब पर जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जो है जिंदा हूँ, तब तक उसके राइट्स मेरे पास है। लेकिन मेरे मरने के बाद 70 साल तक वो राइट्स जो है मेरे जो भी घर में है उनके पास वो राइट्स आ जाएंगे। तो यानी कि मरने के 70 साल बाद तक भी वो प्रॉपर्टी मेरी फैमिली की रहेगी। लेकिन आफ्टर 17 years वो जो राइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब वो पब्लिक डोमेन में चीज आ जाती है और उसका कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है। इसका एग्जांपल आगे बताऊंगी। इसका पर्पस क्या है? स्पेशली रिजर्व द सब्सटेंस ऑफ कॉपीराइट इन द ऑथर एंड हिज राइट टू श्योर फॉर इट्स इन्फ्रिंजमेंट टू द एक्सटेंट अवेलेबल इन द लॉ अदर देन द 1847 एक्ट। तो ये जो एक्ट है वो 1847 एक्ट कहलाता है, जिसमें कि सबसे पहले जानकारी दी गई थी। इसके बाद इसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं और अब जो है जिस स्थिति में है उसकी एक अलग स्टेटस है। लेकिन शुरुआत जो है वो 1847 में हुई थी। उसके बाद 1914 में जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस क्रिमिनल सेक्शंस ऑफ कॉपीराइट, मतलब सेक्शन 7 और 12 के अंदर पहली बार जो है क्रिमिनल ऑफेंस माना गया कि अगर किसी के आप कॉपीराइट जो है उल्लंघन करते हैं या किसी की डुप्लीकेसी करते हैं राइटिंग में, स्पेशली फॉर द राइटिंग पर्पस, तो वो जो है आपको क्रिमिनल जो है उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसको जो है उस पे उसकी जो है आपको सजा भी हो सकती है। तो ये सबसे पहले 1914 में किया गया। और दूसरा मॉडिफिकेशन हुआ द स्कोप ऑफ टर्म ऑफ कॉपीराइट अंडर सेक्शन 4, यानी कि जो कॉपीराइट की टर्म थी वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी और उस टर्म को जो है क्लियर किया गया इसी 1914 के जो कानून था उसमें सेक्शन 4 है। अब जो है कॉपीराइट टर्म बहुत वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि क्या चीज कॉपीराइट में आ रही है और क्या चीज कॉपीराइट में नहीं आ रही है। इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ एक बात की जाती थी कि भाई कोई भी लिखित चीज है, किसी ने पोयम लिखी है, किसी ने कुछ राइटिंग का काम करा है, या किसी ने कुछ भी पोइट्री लिखी है, वो कॉपीराइट में आएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1914 में जो है इसमें सुधार हुए, मॉडिफिकेशन हुए लॉ में, अब जो है कॉपीराइट बहुत क्लियर कट है। आगे हम भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कि कौन कौन सी चीजें कॉपीराइट में आती हैं। इसके बाद जो है ये एक्ट कंटिन्यू रहा, उसमें कुछ एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन हुए 1957 से। और जो है इसके बाद जो है 24 जनवरी 1958 को जो है इनफोर्स में इस एक्ट को लाया गया। उसके बाद भी इसमें मॉडिफिकेशन होते रहे, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, कुछ नई चीज ऐड होती है, कोई नई प्रॉब्लम आती है, कोई नए इशू आते हैं, तो इस जो है कॉपीराइट सभी कानूनों में, नॉट इसमें, सभी तरह के कानूनों में जो है इस तरह से सुधार होते हैं। तो इसमें जो सुधार हुए 1981 में हुए, फिर 84 में, 1992 और लेटेस्ट जो हुए 2012 और 14 में इसमें कुछ सुधार हुए हैं। तो ये आपको मेरा को बस कानून की जानकारी इसलिए देने की है कि अब हम ये कह के नहीं बच सकते कि हमें जानकारी नहीं। अगर आप मान लो एज ए रिसर्चर या एज ए फैकल्टी आप कुछ चीज लिखते हैं, कहीं से किसी का कोई कंटेंट लेते हैं और बाद में वो पता चलता है कि वो किसी की कॉपी है, तो आप ये कह के अपने आप को नहीं बचा सकते कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। तो ऐसा नहीं है, आपको पता भी होना चाहिए और सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि आप तक पहुंचाया जाए कि भाई क्या चीज है। तो ये जो हमारी जो है एज ए फैकल्टी हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस चीज सब चीजों के प्रति अवेयर रहें और अपने स्टूडेंट को भी ये मैसेज कन्वे करते रहे। अब
कॉपीराइट का जो है मतलब क्या है? टर्म ओरिजिनल इन द कॉपीराइट लॉ मीन्स दैट द वर्क ओरिजिनेट विथ द ऑथर। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो शब्द आ रहे, ओरिजिनेट विथ द ऑथर। There is no requirement for the novelty and uniqueness as there is a patent law. अब यहाँ पर कॉपीराइट क्या होता है एक्चुअल में, जहाँ पे कोई नॉवेल्टी या यूनिकनेस की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनेट होना चाहिए ऑथर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन से जो है कौवे की कहानी पढ़ते आ रहे, प्यासे कौवे की कहानी हम सबने पढ़ी है, और हर राइटर या हर नर्सरी की बुक में वो कहानी कहीं ना कहीं लिखी होती है। हमें आज तक नहीं पता कि इस कहानी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, लेकिन हर ऑथर या हर कहानी कहने वाला उस चीज को अपने तरीके से बताता है। तो दिस इज नॉन एज नॉवेल्टी एंड यूनिकनेस। तो किसमें चाहिए? पेटेंट में ये चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वे ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि हम किसी चीज को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी नहीं है। ये आपको कॉपीराइट में बहुत एक हमें पता होना चाहिए कि कॉपीराइट का मतलब कोई यूनिकनेस नहीं है। कॉपीराइट का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। एक ही चीज को हर बंदा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। एक ही कहानी हम सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सबके कॉपीराइट है उस पर अपने। तो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है एक्चुअल में कॉपीराइट में। आपने देखा होगा कि पेंटिंग्स की कॉपी होती, मोनालिसा की जो है पेंटिंग जो है, उसकी पेंटिंग अलग अलग पेंटर अपने हिसाब से बनाते हैं, और हर एक का अपना कॉपीराइट है। क्यों है? क्योंकि इसमें नॉवेल्टी और यूनिकनेस की तो जरूरत हमें है ही नहीं। हमें जरूरत है वे ऑफ एक्सप्रेशन हमारा अलग होना चाहिए। तो ये है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, नॉट आइडिया इटसेल्फ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉपीराइट की जब हम बात करते हैं, कि कॉपीराइट सिर्फ आइडिया के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। उस आइडिया को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो फिर आप किस में जाएंगे? पेटेंट में जाएंगे। अगर आपको आइडिया को प्रोटेक्ट कराना है या प्रोसीजर को प्रोटेक्ट कराना है, देन वी आर गोइंग फॉर द पेटेंट। अगर हम सिर्फ जो है बात करेंगे एक्सप्रेशन की करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉपीराइट के लिए जाना पड़ेगा। तो ये है कॉपीराइट। It is a bundle of the right, including rights of reproduction, communication to the public, adaptation and translation of the work. There could be slight variation in the composition of the right depending on the work. अब बताइए ये क्या है कि कॉपीराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सप्रेशन है मेनली, कि एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब हमें कॉपीराइट में मिलता क्या क्या? मान लो मैंने कोई बुक लिखी या कोई म्यूजिक में कोई गाना कंपोज किया, तो मुझे कॉपीराइट से क्या मिलेगा? पहला तो सबसे पहले मुझे मिलेगा उसका रिप्रोडक्शन का राइट, यानी कि मैं उसकी 100 कॉपी 50 कॉपी करके उसको बेच सकती हूँ। ठीक है ना? यानी कि मैंने मान लो एक एडिशन छपाया 2001 में और एक एडिशन में 2005 में छपा रही हूँ, तो मैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ अगर मेरे पास उसके कॉपीराइट है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है एज ए ऑथर। हमने कोई किताब लिखी, उस किताब को हमने पब्लिश कराया, इसी साल में मान लिया हमने 2025 में कराया। अब क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं हूँ, कॉपीराइट लॉ से अवेयर ही नहीं हूँ, लेकिन पब्लिशर तो अवेयर है। हमने बुक जो है पब्लिश कराई, राइट हमने अपने पास रखे 2025 में, लेकिन 5 साल बाद हमारी जो कॉपी थी, जो हमने बुक लिखी थी, उसकी कॉपी सारी सेल आउट हो गई। अब क्योंकि मार्केट में अगर उसकी डिमांड है, तो पब्लिशर उसको क्या करता है? दोबारा से रिपब्लिश करता है, नया एडिशन निकालता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम ऑथर अनअवेयर है, तो वो जो क्या करेगा, मान लो वो 2025 का 5 साल बाद एडिशन कोई निकाल रहा है 2030 में, तो वो राइट सारे आपके पास आ जाएंगे। हो सकता है आपको उसका पैसा भी ना मिले। तो रिप्रोडक्शन के राइट भी हमको मिलते हैं अगर हमने उसका कॉपीराइट ले रखा है तो। कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, मैं उसको कम्युनिकेट कर सकती हूँ पब्लिक में। और अडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ वर्क, यानी कि एक बात और है कि अगर हमने कोई चीज लिखी है तो उसके ट्रांसलेशन के राइट भी हमारे पास ही है।
ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किताब लिखी माइक्रोबायोलॉजी पर और उसको कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके छापते, नहीं। ये कॉपीराइट लॉस का जो है उल्लंघन होता है, ऐसा नहीं कर सकता। उस पर क्रिमिनल जो है जितनी भी धाराएं होती है वो लग सकती है कॉपीराइट एक्शन में। तो ट्रांसलेशन के राइट भी हमारे पास ही होंगे। देयर कुड बी स्लाइट वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ राइट डिपेंडिंग ऑन द वर्क, उसमें अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो राइट भी हमारे पास ही रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर हम कॉपी कुछ चीज लिखते हैं और उसका कॉपीराइट ले लेते हैं तो। अब ये तो हमें पता चल गया क्या हो सकता है। अब कौन सी चीजें जो कॉपीराइट में नहीं आती, सबसे पहले तो कोई आइडिया, कोई इनोवेशन, वो जो है कॉपीराइट में नहीं आएगी। उसके लिए आपको किस पर जाना पड़ेगा, पेटेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसका कॉपीराइट नहीं करा सकते। फैक्ट्स, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है उसका हम कॉपीराइट नहीं करा सकते। कोई भी रेसिपीज है उसका कॉपीराइट नहीं करा सकते। वर्क्स लैकिंग ओरिजिनलिटी, द फोन बुक, यानी कि जैसे कि आजकल तो बंद हो गया, लेकिन जब पुराने समय में आज से 15-20 साल पहले जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, जो बीएसएनएल वाले थे, वो अपनी एक डायरेक्टरी छापते थे। तो अब वो डायरेक्टरी उन्होंने अल्फाबेटिकली फोन नंबर डाले या जो भी डाला, तो उसका जो है हम कॉपीराइट नहीं ले सकते। वो तो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो उसका जो है कॉपीराइट नहीं लिया जा सकता। नेम टाइटल एंड शॉर्ट फ्रेजेस, किसी भी नाम का कॉपीराइट नहीं हो सकता। आपने देखा होगा ना, जय अम्बे के नाम से बहुत दुकानें होती, वैष्णो देवी के नाम से बहुत दुकानें होती है। तो नेम का, या मान लो किसी के नाम से है, मान लो कि किसी का नाम अमन है, तो अमन टी स्टॉल भी होगा, अमन रेलवे क्या कहते हैं, बस सर्विसेज भी हो सकती है। तो नेम का, टाइटल का कुछ शॉर्ट फ्रेजेस है, उनका भी जो है कॉपीराइट नहीं हो सकता। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किसका कॉपीराइट करा सकते हैं। तो आइडिया का नहीं करा सकते, किसी फैक्ट का नहीं करा सकते, रेसिपीज का नहीं होता। रेसिपीज में कुछ कंट्रोवर्सी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई कलेक्शन ही डाटा का है, तो उसका भी नहीं हो सकता। और कोई नेम टाइटल का भी नहीं होगा। मान लो कि मेरा नाम नीरजा है और मैं उसका कॉपीराइट लेना चाहती हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा। आप अपने नाम का कोई कॉपीराइट लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। आप कोई अपने सरनेम का कॉपीराइट लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीजों के कॉपीराइट्स नहीं मिलते हैं। अब मिलेगा किसका भी, कोई भी लिटरेसी वर्क, यानी कि हमने कुछ भी लिखा, लिटरेसी मतलब कुछ भी हमने लिखा, चाहे का कॉपीराइट करा सकते हैं। पेंटिंग, आपने कोई भी पेंटिंग बनाई, आप उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। कोई भी फोटोग्राफ खींचा आपने, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, दिन भर फोटो खींचते हैं, तो आपने जो फोटो खींची है वो आपकी ही है। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये आप किसी दूसरे के फोटो अगर आप शेयर करते हैं, वो आगे जाते हैं, तो आप किसी भी दिन समस्या में आ सकते हैं। तो फोटोग्राफ्स जो है उनका भी कॉपीराइट होता है। ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग बनाए तो कॉपीराइट होता है। ड्राइंग और पेंटिंग में अंतर मेरे को लगता है समझ आ रहा है हमें कि ड्राइंग क्या है और पेंटिंग क्या है। तो ड्राइंग अगर हम करते हैं तो उसका भी जो है कॉपीराइट करा सकते हैं। कोई भी फिल्म मूवी वगैरह जो बनती है उनका कॉपीराइट होता ही है। जब मूवी देखते हैं हम, चाहे किसी भी देखें, चाहे किसी यूट्यूब पे देखें, चाहे पिक्चर हॉल में जाके देखें, आगे लिखा हुआ रहता है, आगे कॉपीराइट सर्टिफिकेट। म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक होता है उसका कॉपीराइट कराया जा सकता है। आपने कोई म्यूजिक कोई कंपोज करा, उसका बना सकते हैं। कोरियोग्राफर, डांस, आपने किसी की कोरियोग्राफी करी, किसी डांस की या किसी भी चीज की, तो वो भी आप क्या करा सकते हैं, कॉपीराइट एक्ट में आता है वो। और कुछ भी आपने एक स्कल्पचर बनाया, किसी भी चीज का बनाया, चाहे पत्थर का बनाया, चाहे मिट्टी का बनाया, किसी का भी बनाया, जो उस सब का भी क्या हो सकता है, कॉपीराइट होता है। तो कॉपीराइट इन मुख्य रूप से इन 8 चीजों का हो सकता है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो बहुत रेयर स्थिति में आती हैं, लेकिन मेनली जो है कॉपीराइट इन 8 चीजों का होता है। इसको एग्जाम्पल से हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब एक बात समझिए, अब क्योंकि हम तो भी फैकल्टी मेंबर है, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, हमको तो जरूरत पड़ती है रेफरेंसेस की। क्या करेंगे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमने कहीं से कॉपी नहीं किया। कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं, इसका मतलब ही ये होता है कि हम कहीं ना कहीं से कोई चीज ले रहे हैं। तो रिसर्च के पर्पज से अगर हम ले रहे हैं, कोई रिसर्च के पर्पज से अगर हम ले रहे हैं, तो हम उसको विद एक्नॉलेजमेंट उसको यूज ले सकते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग इन क्लासरूम, जैसे मैं अभी पीपीटी बना रही हूँ, पीपीटी प्रेजेंट कर रही हूँ, आपने अगर देखा हो तो मेरी फर्स्ट पीपीटी में लिखा था कि ये पीपीटी जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, तो इसमें मैं काम में ले सकती हूँ।
लेकिन मुझे इस बात को मानना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगी कि ये पीपीटी मैंने बनाई है, या आप कहीं पीपीटी बना रहे हैं तो ये आपने बनाई, नहीं। अगर आपके ओरिजिनल है देन इट्स ओके, आपका कॉपीराइट है। लेकिन अगर आपने कहीं से लिया है तो आप उस बात को क्लियर करें कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से काम में ली जा रही है, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। और क्रिटिसिज्म और रिव्यू, आपने देखा होगा कि अखबारों में जो है किताबों के रिव्यूज आते हैं, तो वहां पर भी क्रिटिसिज्म और रिव्यू अगर करने के लिए किसी चीज को लिया जा रहा है तो वहां पर ये जो है कॉपीराइट कानून इस पे लागू नहीं होता। फॉर रिपोर्टिंग करेंट इवेंट्स, कोई आप इवेंट को, जैसे बुक लॉन्च है, अगर वो बुक लॉन्च में आप जा रहे हैं, कोई जो है कोई भी व्यक्ति जा रहा है और आके उसकी रिपोर्टिंग करता है, तो वो जो है कॉपीराइट एक्ट में नहीं आता है। किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में का पार्ट है अगर, तो भी नहीं आएगा। परफॉर्मेंस बाय एन एमेच्योर क्लब और सोसाइटी इफ द परफॉर्मेंस इज गिवन टू ए नॉन पेइंग ऑडियंस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो है बहुत भ्रांति है। भ्रांति किस सेंस में, कि आपने देखा होगा कि किसी भी सिंगर का या किसी भी चीज का जो है हॉल में या किसी बंद जगह पर जो है प्रोग्राम होता है, तो आपसे टिकट लिए जाते हैं। टिकट लिए जाते हैं ना। जब टिकट लिए जाते हैं या आप उस टिकट लेके जब आप जाते हैं तो उसका कुछ पार्ट, जो वो सिंगर आ रहा है, जो परफॉर्मेंस करने आ रहा है, स्पेशली गाने की बात हो रही है, क्योंकि गाने के जो लिरिक्स है वो सब क्या है, जो धुनें हैं वो सब किस में आ रही है, कॉपीराइट में। तो अगर मान लो कोई आपके यहाँ गाना है, और मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, कि मान लो मैं किसी प्रोग्राम में गई और वहां पर मैंने किसी का गाना गाया, मान लिया किशोर कुमार, लता मंगेशकर या किसी और का मैंने गाना गाया, तो वो कॉपीराइट कानून में आएगा, मुझे उसका कुछ पेमेंट उसको देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कमर्शलाइज्ड है। जब आपके यहाँ कोई भी, जैसे सोनू निगम कहीं जो गाने गा रहा है, उसकी परमिशन उसने ली हुई होगी डेफिनेटली, तभी वो गा रहा है। अगर वो फ्री में गा रहा है देन इट्स ओके। लेकिन अगर वो उस गाने से पैसे कमा रहा है तो उसको जो है, जो भी उसका ऑथर है, जिसमें भी वो आ रहा है, चाहे गाने में आ रहा है, चाहे सिंगिंग में आ रहा है, चाहे किसी धुन में आ रहा है, धुन कंपोजिंग में आ रहा है, उसको वहां उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आपने देखा हो ऑल इंडिया रेडियो पे जो गाने बजते हैं ना, आप और हम सुनते हैं, एफएम रेडियो पे जो गाने बजते हैं, उन सबका वो कॉपीराइट लेके रखते हैं। वो बिना परमिशन के या बिना उनको पैसा दिए या बिना उनको रॉयल्टी दिए उस गाने को नहीं बजा सकते। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, हम मोबाइल पर रील्स देखते हैं, है ना। 15 सेकंड की होती है, 20 सेकंड की होती है, जितनी भी देर की वो रील होती है, पीछे उसमें गाना आता है, कुछ लगा देते हैं वो लोग, उनकी इच्छा होती है तो लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो यूट्यूब के गाने हैं वो उनके खुद के हैं। आपको अगर कोई यूट्यूबर लगाता है तो वो उनके उससे लगा के लेता है, क्या उनकी जो डिक्शनरी है, डायरेक्टरी है, उसमें से लेता है, तो सही है। लेकिन वो दूसरा अगर गाना लगा देता है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, स्पेशली आजकल के जो डिजिटल जो एरा है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम मोबाइल से अगर कोई गाना लगाकर कहीं अपनी रील में लगाते हैं, तो वो जो गाने का उनका बैंक के, अगर उसके अतिरिक्त आपने कोई लिया है तो आप पे कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी पेमेंट करके रखते हैं ताकि उनके जो व्यूअर्स है उसको काम में ले लें। The making of sound recording for the literacy, dramatic and musical work under the certain condition. अब आप देखिए, मेकिंग ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क अंडर सर्टेन कंडीशन। आपने देखा होगा अपने यहाँ आजकल कचरा उठाने के लिए जो है गाड़ियां आती हैं, उन पे गाना बजता रहता है ना। बजता है कि कचरा बाहर फेंकिए, जो है कचरा उठाने वाला आया, तो उसका भी कॉपीराइट है। आप और हम उस गाने को ऐसे ही काम में नहीं ले सकते जो हुआ है। तो इस तरह के जो लिटरेरी वर्क होते हैं, जितना भी होता है, किसी म्यूजिकल वर्क में हम काम में ले सकते हैं उसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ एक्सेप्शंस है जिसके की अंतर्गत हम कॉपीराइट कानून को जो है एक तरह से बाईपास कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर आप कोई भी ऐसा काम करें, तो मेरी तो सजेशन ये है कि अगर आप उसको या तो सोर्स लिखें, और सोर्स नहीं लिख रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज जरूर करें, नहीं तो आप कभी भी कॉपीराइट के जो है उल्लंघन या उसका जो है कहते हैं दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये कॉपीराइट के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिन पर की बात की जा सकती है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, वॉइस प्रोटेक्शन।
हमारे अमिताभ बच्चन जी है। अब हुआ क्या, इनको अपना वॉइस प्रोटेक्शन कराना पड़ा, क्यों भाई? मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि आप किसी चीज का कॉपीराइट करा सकते हैं, क्योंकि इनकी वॉइस की एक अपनी पहचान है। आपने भी देखा होगा बीएसएनएल के फोन में जैसे हम डालते हैं तो वो साइबर फ्रॉड में उनकी आवाज का उपयोग हो रहा है। तो क्या हुआ, इनकी आवाज की लोग मिमिक्री कर करके उसका यूज करके मिसयूज करके जो है पैसा कमा रहे थे। तो इन्होंने जो है हाई कोर्ट में डाली, हाई कोर्ट में अपनी रिट डाली कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को तो अपने वॉइस को प्रोटेक्ट देना है कॉपीराइट थ्रू। तो आज की तारीख में इनकी वॉइस का कॉपीराइट इनके पास है। अगर इनकी वॉइस को कोई यूज करता है, चाहे वो मिमिक्री की पॉइंट में करे, तो उस पर ये क्लेम कर सकते हैं। तो वॉइस का जो है, आपकी आवाज, आपको लगता है कि आवाज, आपकी आवाज बहुत यूनिक है, उस आवाज का एक अपना वेटेज है, तो आप अपने आवाज का जो है कॉपीराइट करा सकते हैं कॉपीराइट लॉस के अंतर्गत। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप अपने वॉइस को भी जो है कॉपीराइट करा सकते हैं। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सुबह ही 10:45 या 46 मिनट पर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है इस नाम का कॉपीराइट करने के लिए केस फाइल करा। वो तो बात सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, और भी कई लोग थे कि भाई वो इस पर, इस नाम पर मूवी बनाएंगे आगे चलकर, या इस नाम का कहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारी किससे जुड़ा हुआ है हमारी जो है नेशनल सेटलमेंट जुड़े हुए हैं इसके साथ, हर व्यक्ति के साथ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो है कॉपीराइट ऑपरेशन सिंदूर नाम को कॉपीराइट लेने के लिए फाइल करा, और बहुत लोगों ने करा, लेकिन बाद में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन डाली थी उसको विड्रॉ कर ली, लेकिन कईयों की अभी भी डली हुई है और वो प्रोसीजर में है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉपीराइट एक कितना बड़ा इश्यूज इंडस्ट्रीज के लिए और ऑथर्स के लिए और किसी भी जो भी पब्लिक डोमेन में है उसके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। एक नाम की कितनी वैल्यू है, उसका कॉपीराइट करना कितना जरूरी है। आप और हम कई बार समझ ही नहीं पाते कि कॉपीराइट जो हमारा था उसका मिसयूज कैसे किया जा रहा है, और हम किसी दूसरे का अनजाने में कैसे कर रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप कॉपीराइट में, आपको ऑपरेशन सिंदूर का इसीलिए एग्जांपल दिया है कि विद इन 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, विद इन 24 आवर्स में लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी इस ऑपरेशन सिंदूर नाम का कॉपीराइट लेने के लिए। तो ये सीधी सी बात है कि आगे उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट उनको मिलने वाला था। तो ऐसा इसीलिए किया कि बाद में कुछ लोगों ने वापस ले लिया, वो एक अलग चीज है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहती हूँ। हम सब ने, मेरे को लगता है, थ्री इडियट मूवी देखी होगी डेफिनेटली। चेतन भगत जी हमें दिखाई दे रहे हैं, और विधु विनोद चोपड़ा जी इसके जो है प्रोड्यूसर थे। चेतन भगत जी ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कई बार पब्लिशर जो है हाई साइड पर होता है, कई बार ऑथर हाई साइड पर होता है, यानी कि जो पब्लिशर है, यहाँ पे पब्लिशर आप समझ लो विधु विनोद चोपड़ा ने, क्योंकि ये राइट्स खरीदे थे। तो जब ये बुक आई थ्री इडियट, जब ये मूवी आई थ्री इडियट, और राजकुमार हिरानी जो है इसके डायरेक्टर थे, तो क्या हुआ कि चेतन भगत उस समय बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे। इस मूवी के बाद उनको एप्रिसिएशन और जो है पहचान मिली थी। तो चेतन भगत ने अपनी जो बुक थी लिखी थी इन्होंने, उस बुक के राइट बहुत कम पैसों पर इस मूवी के प्रोड्यूसर को सेल आउट कर दिए। उनको नहीं पता था कि मूवी बनेगी और मूवी बनने के बाद सुपर हिट हो जाएगी या बहुत ज्यादा पैसा कमाएगी। यहाँ पर हुआ क्या कि जब पिक्चर बनी, पिक्चर ने बहुत पैसा कमाया, तो चेतन भगत जी को लगा कि मेरा मिसयूज किया गया है। मिसयूज किस सेंस में, कि उन्होंने जो है, इनको क्रेडिट बहुत कम दिया गया, या जो भी इनके बीच में आपस में डिस्कशन हुआ होगा, जब किताबों के राइट या बुक के राइट इन्होंने इनको दिए होंगे, तो हो सकता है क्योंकि उस समय चेतन भगत जी बहुत ज्यादा रिनाउंड नहीं थे और प्रोड्यूसर जो है फिल्म के बहुत ज्यादा रिनाउंड थे, तो कम पैसों पर उन्होंने नेगोशिएशन उनके बीच हुआ होगा। जब पिक्चर हिट हो गई तो चेतन भगत जी के जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये बुक
तो ये जो मूवी है ये बनी तो आपकी बुक पर है, जब आपकी बुक पर बनी है तो आपको क्रेडिट ज्यादा मिलना चाहिए था, आपको क्रेडिट तो मिला ही नहीं है ज्यादा कहीं पर भी। तो फिर चेतन भगत जी ने इस मूवी के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे उन पर केस कर दिया। अब केस कर दिया तो यहाँ पर जो मैं चीज बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि हमें क्यों कॉपीराइट एक्ट पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि रिजल्ट जो है, जो कोर्ट का डिसीजन आया वो चेतन भगत के अगेंस्ट आया, यानी चेतन चेतन भगत जी वो केस हार गए। क्यों हार गए? सीधी सी बात है कि आपने जब एक बार नेगोशिएशन कर लिया तो अब आप 3 साल बाद 4 साल बाद कह रहे हो कि नहीं मुझे तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था। ये चीज तो आपको पहले देखनी चाहिए थी कि जब आप राइट्स दे रहे थे, जब मैंने कोई चीज 20 रुपए में बेच दी या वो चीज अच्छी हो गई तो अब मैं उसके 60 रुपए मांगूंगी तो संभव नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये केस हार गए। बाद में उनको लगा कि भाई मुझे तो कॉपीराइट एक्ट पता ही नहीं था, ये उन्होंने पब्लिकली इस बात को कहा कि भाई मुझे तो कॉपीराइट एक्ट की जानकारी नहीं थी। तो भाई इसमें सरकार क्या करे, आपको नहीं थी तो ये तो कोई वो है ही नहीं एक्सक्यूज। तो इसलिए हमें कॉपीराइट एक्ट पता होना चाहिए, हमारे राइट्स पता होने चाहिए। तो जो भी लिटरेरी वर्क है, इसमें क्या था, नॉवल एक लिटरेरी वर्क था, उनकी नॉवल थी, उस पर ये मूवी बनी थी, तो इस पर भी कॉपीराइट इस तरह से होता है। अब चेतन भगत जी का एक केस और है। अब चेतन भगत जी उल्टे थे। उल्टे मीन्स ये कि इंदौर की, बेंगलुरु बेस्ड जो है, इंदौर में रहती हैं अब ये अनविता वाजपेयी। इन्होंने एक किताब लिखी, ड्राइंग पैरेलल्स। अब इनका कहना है कि जो चेतन भगत है उन्होंने जो अपनी मूवी लिखी वन इंडियन गर्ल, वो इनकी किताब से ली गई है। ये केस चला, और केस चलाने के बाद जो है चेतन भगत जी ने इसको, उनको कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया, क्योंकि आज की तारीख में चेतन भगत जी बहुत रिनाउंड है, ऑथर है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनसे जो है नेगोशिएशन करा, और ये केस चला था, और इन्होंने अवंती जो है अनिता वाजपेयी थी, इन्होंने ये केस करा था कि इनकी किताब की जो है कॉपी उनके द्वारा की गई है, तो वो थोड़ा सा कॉपीराइट का जो है कानूनों का उल्लंघन है, और सरकार ने भी उसको माना कि हाँ आप सही हैं। और बाद में कुछ आपस में इनके बीच में सेटलमेंट हुआ, और उसके बाद ये केस रिजॉल्व हुआ। तो यहाँ पर इनको पता था कि मेरे राइट्स क्या हैं, तो हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, तो हम आगे ऐसी स्थिति से हम भी बच सकते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल और है, ये जो मैंने एग्जांपल आपको दो बताए ना चेतन भगत जी के, ये मैंने आपको बताए हैं लिटरेसी वर्क, यानी कि हमने कोई भी चीज लिखी उसका जो है किस तरह से कॉपीराइट होता है। अब देखिए आप, ये रानी मुखर्जी, आप और हम सब जानते हैं। बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी बंटी एंड बबली, बहुत गाने उसके फेमस हुए थे, अमिताभ बच्चन जी, ऐश्वर्या राय उसमें थे। अब उस गाने में रानी मुखर्जी ने ये एक ड्रेस पहनी थी। ये ड्रेस जो है इन्होंने पहनी थी, और जी ड्रेस के जो डिजाइनर थे वो थे अकीन अब्दुल्ला मूवी में। तो जब ये पिक्चर रिलीज हुई तो क्या हुआ, ऐसे तो पता नहीं चलता, पता इसलिए नहीं चलता कि मूवी 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी, उसमें अगर 1 सेकंड कोई ड्रेस पहने तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि जब ये मूवी रिलीज हुई तो रिलीज के समय जो पोस्टर लगे, उस पोस्टर पर ये वाला पार्ट था। तो जब पोस्टर आदमी देखता है, मूवीज के पोस्टर लगते हैं, तो इस ड्रेस पर सबकी निगाह गई, सी बात है पोस्टर पे तो जाएगी। तो सबने कहा कि भाई ये ड्रेस किसने बनाई, तो अकीन अरोड़ा ने कहा कि मैं इसका डिजाइनर हूँ, क्योंकि मूवी में मैं ही डिजाइन करी थी सब मैंने ड्रेसेस, तो ये भी मैंने ही डिजाइन करी है। तो सुमित वर्मा ने केस करा, डिजाइनर सुमित वर्मा ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिजाइन जो है मैंने करी है, और ये 2003 में जो है विंटर कलेक्शन जो था, उन्होंने कोई फैशन शो करा होगा, उस विंटर कलेक्शन में ये डिजाइन दी गई थी। तो ये केस हार गए अकीन अरोड़ा जी। और बाद में जो है जब मूवी में जो है क्रेडिट देते हैं, तो क्रेडिट में जो है सुमित वर्मा जी का नाम लिखा गया, तब जाके ये मैटर सॉल्व हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो डिजाइनिंग होती है कपड़े की, उसका भी क्या होता है, कॉपीराइट होता है।
ये मैं एग्जांपल आपको आजकल, क्योंकि साइबर जो है हम काम करते हैं, नेट का डिजिटल युग है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है, कोची बेस्ड बच्चा है, जिसका के नाम ऑगस्टिन है। ऑगस्टिन नाम का एक लड़का है, और इस लड़के ने अपनी एक वेबसाइट बनाई, और उस वेबसाइट डोमेन डोमेन बनाया, और उस डोमेन को नाम दिया maxchanzuckerberg.org। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से काम चल रहा था उसका। बच्चे को, 14 साल का बच्चा था मात्र, उसको बहुत कुछ जानकारी भी नहीं थी। तो सिंपल सा उसने नाम दिया maxchanzuckerberg.org, चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, जुकरबर्ग हम सब जानते हैं, फेसबुक के फाउंडर, इनकी हुई बेटी, और उस बेटी का नाम रखा गया मैक्सिमा चैन जुकरबर्ग, ये छोटी बेटी, और इस बेटी का नाम रखा गया मैक्सिका चैन जुकरबर्ग। अब आ गई समस्या। क्यों आई समस्या? कि भाई ये तो फेसबुक के फाउंडर है, जुकरबर्ग जी। तो जैसे ही सर्च में डाला गया गूगल में, तो किसकी वेबसाइट खुल रही थी? इस बच्चे की, ऑगस्टिन की, maxchanzuckerberg.org। अब दिक्कत आ गई। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये maxchanzuckerberg.org खुली, तो एक जनरल इंप्रेशन ये जा रहा था कि ये वेबसाइट जो है, या ये जो डोमेन है, वो किससे रिलेटेड है? फेसबुक से रिलेटेड है। आप समझ रहे हैं ना? फेसबुक अपने आप में एक नाम है, एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो है, कंपनी है। तो फिर क्या हुआ, ये बहुत बड़ा इशू आया। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, इस एग्जाम्पल को बताने का मतलब ये है कि हमारी कंट्रीज में जो आईपीआर से रिलेटेड जितनी भी अनअवेयरनेस है, हमारी स्टूडेंट्स में, हमारी यंग जनरेशन में जितनी भी अनअवेयरनेस है, उसका भुगतान हमारे देश को किस तरीके से करना पड़ रहा है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो फेसबुक की कंपनी ने ऑगस्टिन से जो है संपर्क करा, मिले उनसे, और उन्होंने उस नाम को सिर्फ 46,000 रुपए में खरीद लिया। अब आप समझ सकते हैं कि देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। जो नाम, जिस पर कॉपीराइट ऑगस्टीन का था, maxchanzuckerberg.org, उसको मात्र 46,000 रुपए में फेसबुक ने खरीद लिया। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। 2015 की बात है कि भाई हमारी जो नई जनरेशन है, जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो तो जानते ही नहीं है कि भाई है क्या चीज ये, आईपी राइट्स क्या है, या कॉपीराइट क्या है, या ट्रेडमार्क क्या है, या पेटेंट क्या है। उस बच्चा तो 46,000 रुपए लेके भी बहुत खुश था, उसको नहीं पता था कि उसके क्या राइट्स थे। तो ये भी राइट्स हमारे ही हैं कि हम किसी डोमेन को किस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंस कॉपीराइट की है। अगर ये बच्चा इस राइट से परिचित होता, तो शायद ये 46,000 की जगह जो है 46 लाख तो एटलीस्ट हो सकते थे। तो समझ सकते हैं कि नाम का और कॉपीराइट की कितनी इम्पोर्टेंस है। और ये छोटी छोटी बात हमें पता ही नहीं है। हम में से, आप में से कई लोग यूट्यूब चैनल भी बनाते होंगे, तो आपको पता ही नहीं है कि आप जो नाम बना रहे हैं वो आगे जाके कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपने तो किसी और का नहीं रख लिया। ये भी हो सकता है, जब हम जो है आईडी बनाते हैं जीमेल पर या कहीं पे, तो हम अपना नाम बनाते हैं, तो उसको वो रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं, ये आप नहीं ले सकते, इसके आगे कुछ और लगाइए, तो मतलब वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज बना रहे हैं उसके हमारे राइट्स कहाँ तक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? यानी अपने यूट्यूब पे चैनल पर, या अपना फेसबुक कोई आईडी बनाते हैं, या जीमेल कोई आईडी बनाते हैं, वो सब कॉपीराइट में आते हैं। अब आप जी देखिए, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। ये एक फोटोग्राफर है, डेविस स्लैटर, और ये एक चिंपैंजी है, मंकी सेल्फी। बहुत जो है ये केस जो है, जो स्पेशली जो कॉपीराइट्स में और आईपीआर राइट्स में इन्वॉल्व है, उनके बीच ये केस बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था कि क्यों ऐसा हुआ। ये जो डेविड है, ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, जंगलों में जाते हैं, जानवरों के फोटो खींचते हैं, ठीक है, बेचते हैं उनको, और कई अवार्ड भी इनको मिले।
एक बार ऐसे ही जंगल में जा गए और फोटो खींच रहे थे, कोई बात नहीं, उनका काम था, खींच रहे थे। खींचते खींचते अचानक ये चिंपैंजी इनके हाथ से कैमरा खींच के भाग गया। होता है, बंदरों की आदत होती है कि कोई भी चीज उनको लिखती है तो खींच लेते हैं। तो इसी तरह से इसने खींच लिया। अब बंदर है वो तो भाई, बंदर के हाथ में कोई चीज चल गई तो वो उसको घुमाएगा फिराएगा देखेगा। ठीक इसी तरह से चिंपैंजी ने भी करा, कैमरे को खोला, करा या जो भी करा। अचानक से बटन दब गया और सेल्फी मोड में कैमरा आ गया और ये सेल्फी इस की खिंच गई। अब भाई उनका कैमरा चला गया था डेविड जी का, तो उन्होंने कोशिश कर कुरा के अपना कैमरा वापस ले लिया इससे। देखिए, लेते ही हमारी कोई चीज चल जाती है तो हम भी छूट के लेते ही हैं। इसी तरह से ये कैमरा इनके पास वापस आ गया। अब क्या हुआ, जब इन्होंने इस कैमरे को देखा तो ये सेल्फी आई। ये तो बहुत अच्छी फोटो है, क्योंकि थे ही वो तो फोटोग्राफर। उन्होंने इसको छापा और सेल आउट कर दिया इस सेल्फी को। अब आप और हम होते हैं, ठीक है, बेच आया, अखबार में अवार्ड मिल गया, कौन सी बड़ी बात है, खींचा उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको लॉस की जानकारी है, जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जानकारी है, वो आसानी से ऐसा नहीं होने देंगे। तो एनिमल वेलफेयर की एक जो है सोसाइटी, पीटा नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है। उन्होंने कोर्ट में केस करा और उन्होंने कहा कि ये सेल्फी फोटोग्राफर की, डेविड की नहीं है, कॉपीराइट इनके पास नहीं है इसके। इसके कॉपीराइट तो इसके पास है, चिंपांजी के पास, क्योंकि सेल्फी तो उसने खींची, उन्होंने थोड़ी खींची, डेविड ने। तो केस चला और बाद में जो पीटा ऑर्गेनाइजेशन थी वो केस जीत गई। और कोर्ट ने कहा हाँ भाई, ये जो है कॉपीराइट डेविड के नहीं है, ये राइट इस चिंपैंजी के हैं। तो अब चिंपैंजी को तो राइट मिल नहीं सकते थे, क्योंकि केस किसने करा था, उस सोसाइटी ने करा था। तो सोसाइटी को राइट दिए गए और कहा गया डेविड से कि इस सेल्फी से या इस फोटोग्राफ से आपको जो कुछ भी इनकम हुई है या आगे होगी, उसका कुछ पार्ट आप जो है इस पीटा सोसाइटी को दे, ताकि वह एनिमल वेलफेयर में लगा सके। तो दिस इज द पावर ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या हम गए कॉपीराइट की पावर। आप समझ सकते हैं कि क्या क्या है। अब एक और देखिए उदाहरण, ये बात है रोजर का। रोजर ने अपने एक, आपसे क्या करते हैं कॉपीराइट में, आप ऐसा नहीं कि किसी के रंग बदल दे फोटो के और वो आपके राइट हो गए, ऐसा नहीं है। जैसे ये थे रॉबर्ट के, थे आर्ट में, मैंने कहा ना कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है वो भी कॉपीराइट में आता है। तो ये जो जो थे रोजर थे, इनका एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था और इन कूल्स ने क्या करा, इसमें अपनी होशियारी दिखाते हुए रंग भर दिए और इसके नाम से जो है इसको सेल आउट कर दिया। तो कोर्ट में केस गया कि नहीं, ये तो आर्ट वर्क था, आप कलर चेंज करके थोड़ी आपका हो गया। तो हम किसी की आर्ट वर्क को कलर में चेंज ला ला के उसको हम कहें कि नहीं कॉपीराइट हमारा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो कलर अगर चेंज करेंगे तो भी राइट तो जिसकी वो ओरिजिनल चीज है उसी की रहेगी। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा उदाहरण है गाने का। दबंग मूवी थी और दबंग मूवी में गाना था झंडू में झंडू बाम होगी। अब क्या हुआ, वो गाना बहुत हिट हो गया। तो हिट हो गया तो झंडू बाम जो कंपनी थी, उसने दबंग के जो प्रोड्यूसर थे उन पर केस कर दिया कि हमारा नाम जो है झंडू बाम का नाम आपने अपने गाने में बिना हमारी परमिशन से क्यों लिया। तो बाद में जो है फिर सेटलमेंट हुआ और फिर उसका कुछ ना कुछ उनको जो है क्रेडिट जो है झंडू बाम कंपनी को देना पड़ा। और फिर जाके ये सेटलमेंट हुआ। और इसी बीच वजह गाने, इसी कारण से, इस केस की वजह से जो है कुछ समय तक जो है ये गाना रुक गया था। तो इमामी जो क्रीम थी वो ये झंडू बाम बनती है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम आप अपनी तरह से यूज नहीं कर सकते, ये आप समझ लें। कि किसी भी कोई प्रोडक्ट है, कि मान लो कोई पेप्सी की बॉटल है, मैं अपने गाने में पेप्सी का नाम लिख दूं या मैं किसी अपनी पोएम में पेप्सी का नाम लिख दूं, ऐसा नहीं होगा। ये कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। ये एक एग्जांपल मैं बार बार देती हूँ। हम में से लगभग 80% लोग, इंक्लूडिंग अवर स्टूडेंट एंड अवर फैकल्टी मेंबर्स, हम सबको अगर कोई चीज कॉपी करानी है तो हम कहते हैं जेरोक्स करा लो। हमारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं जेरोक्स करा लो, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में सब व्यक्ति कहते हैं जेरोक्स करा लो। बाजार में आप जाएंगे तो सब जगह आपको जेरोक्स की शॉप मिलेगी, देखिए हर जगह लगा है। जेरोक्स नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, फोटो कॉपी कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा एक जो है ये जो एग्जाम्पल है ना,
ये हम पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ बहुत बड़ी तरीके से जुड़ा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस था और कैंपस में फोटोकॉपी की मशीन लगी हुई थी। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स, और अगर किसी ने दिल्ली कैंपस देखा हो तो बाहर जो है काफी पब्लिशर्स की शॉप भी है, बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं। तो स्टूडेंट्स वहां से बुक खरीदते थे और जिस जो पार्ट उनको लगा कि ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, उसकी फोटोकॉपी उस फोटोकॉपियर मशीन पे जाके कराते थे। फोटो कॉपियर वाले को ये लगा कि हर बच्चा आ रहा है, एक दो पेज कहीं से ला रहा है, दो पेज कहीं से ला रहा है, दो पेज कहीं से ला रहा है, तो मैं सबकी फोटो कॉपी करा के क्यों ना एक बुक फॉर्म में उनको दे दूं। उसने बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जो पब्लिशर्स की वो सेल डाउन हुई, तो उन्होंने सर्वे कराया कि भाई हमारी किताबें क्यों कम हो रही हैं बिकने। तो पाया कि भाई ये तो कहानी ये है कि लोगों को तो एक साथ ही मिल रही है बुक, तो वो क्यों किताब खरीदेंगे। तो उन्होंने इस जो फोटो कॉपियर मशीन था इस पर केस कर दिया सब पब्लिशर्स ने कि ये जो है कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। भाई जेरोक्स कराना क्या हुआ, रिप्रोड्यूस करना हुआ ना। तो लेकिन ये केस जो है वो पब्लिशिंग कंपनीज हार गई, क्योंकि एक तो क्या था कि इसको गवाही नहीं मिली, कि मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है। स्टूडेंट्स ने भी कहा नहीं हम ऐसे ही ले रहे हैं, या जो कुछ भी होगा यूनिवर्सिटीज वाले इसके फेवर में थे, और क्योंकि ये कैंपस में थे, तो ये माना गया कि ये जो है एजुकेशनल पर्पज से करा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो बाद में वो दुकान वहां से हटा भी दी गई। तो ये केस है कि हम जो है 10 किताबों में से थोड़ा थोड़ा लेकर अगर उसकी हम फोटो कॉपी करके बेच देते हैं, तो वो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन आता है। यहाँ पर एक चीज जो मैं और कहना चाहती हूँ कि जेरोक्स नहीं शब्द है, फोटो कॉपी शब्द होता है। जेरोक्स तो कंपनी है जो कि फोटो कॉपी की मशीन है। तो आज के बाद हम भी अगर कहीं किसी को देखें कि भाई जेरोक्स नहीं, क्या होता है वो फोटो कॉपी होता है, जिसको कि अब ये वो बंदा है जिस पर कि ये केस लगा था। आप देख सकते हैं कितना लार्ज स्केल पर ये काम करता था। अब तो बंद हो गई ये शॉप, लेकिन पहले जो है स्पेस पे चला था। तो आप ये समझ सकते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये एक उदाहरण और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। कुमार विश्वास जी आपको दिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी दिख रहे हैं, आपके लीडर थे पहले, अब नहीं है। और इनका एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में इनका यूट्यूब था, चैनल था, उसमें इन्होंने कोई प्रोग्राम करा होगा, वहां पर जो है हरवंश राय जी बच्चन जी की कोई पोयम जो है उन्होंने इसमें गाई। और पोयम थी नीट का निर्माण फिर। तो इसका कोई पार्ट जो है इनका तर्पण प्रोग्राम था, उसमें कुमार विश्वास जी ने इसको गाया। और क्योंकि वो यूट्यूब पे था, यूट्यूब पे पैसा भी आता है। तो जैसे ही वो जो है एक तरह से कहे ऑन एयर हुआ, तो अमिताभ बच्चन जी ने कुमार विश्वास जी के पास नोटिस भेजा कि आपने जो है कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करा है। क्यों करा है समझ आ रहा होगा, क्योंकि हरबंश राय बच्चन जी की डेथ के बाद 70 साल राइट किसके पास है, बच्चन फैमिलीज के पास। तो वो जो है जीत गए, और 7 रुपए 25 पैसे की कुछ इनकम हुई थी, जो कुमार विश्वास जी ने वापस अमिताभ बच्चन जी को लौटाई। तो बात यहाँ पैसे की नहीं है, यहाँ बात राइट्स की है कि आप अपने राइट्स के लिए कितने अनअवेयर हो या अवेयर हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बता रही थी कि जो कॉपीराइट कानून है वो जो ऑथर है उसकी एज तक और उसके बाद 70 साल तक। तो आज की तारीख में जो प्रेमचंद जी के जितने भी नॉवल है वो सब कॉपीराइट फ्री है, आप उनको काम में ले सकते हैं, उनको कहीं जो है आप कोट करना चाहते हैं तो कोट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि 70 साल तक प्रेमचंद जी की फैमिली के पास वो राइट्स है, जितने भी उनके जो फेमस जितने भी उनकी किताबें हैं या जो कुछ भी है, तो अब वो राइट जो है राइट फ्री हो गए, कॉपीराइट फ्री हो गए। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या मैं अपना ट्रांसलेशन का जो है वो आप राइट आपके पास ही रहते, तो हाँ राइट मेरे पास ही रहेंगे। अच्छा एक बात है, आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट? यस, कंप्यूटर अगर आप में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो भी कॉपीराइट एक्ट में आएगी। और कितना यूज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, आप हम सब लोग जो थीसिस लिखते हैं लिखाते हैं, तो आप जो है फोटो और इमेजेस तो फाइव फाइव वर्क एक ऑथर के 5 काम में ले सकते हैं, और 10% जो है आप किसी की कॉपी कर सकते हैं। पूरी थीसिस में 10% आपकी कॉपी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये जो है यूजीसी के द्वारा नियम बनाया गया है। अगर डाटाबेस इंफॉर्मेशन है तो 10% हो सकती है,
और जो है 2500 व्हील्स और द सेल एंट्रीज जो है वो आप काम में ले सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने रिसर्च में किसी का डाटा काम में लेते हैं तो 10% डाटा उसका काम में लिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। तो कॉपीराइट में जो दो चीजें हमारे पर्पज से एज ए फैकल्टी मेंबर हमारे लिए है कि एक तो हमें जो है पैराग्राफ में जो हम बात करते हैं तो 10% तक हमारे हम जो है किसी की कॉपी कर सकते हैं, और अगर हम कहीं से डाटा बेस ले रहे हैं किसी का तो 25 जो है 10% ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं सेफ साइड आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी की कॉपी करते हैं या किसी से डाटा लेते हैं या कोई फोटोग्राफ लेते हैं या मैप लेते हैं तो आप प्लीज नीचे सोर्स लिख दें, सोर्स लिख दें, एक्नॉलेज लिख दें कि हमने यहाँ से लिया है, आप फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोर्स भी नहीं लिख रहे, आपको इस ऑथर को जो है रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं दे रहे, तो आप कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्रिमिनल केस में आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉपीराइट, जो कि आपसे और हमसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। हिमानी मैम, हमारे पास टाइम है? हिमानी मैम, यस मैम। मैम यस हम मैम, टाइम कंटिन्यू है। कर सकते टाइम है। जी मैम। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। हैं? तो कॉपीराइट एक बहुत आईपीआर का टूल है जो कि हमसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। दूसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में भी कल या जो भी आपके लेक्चर पहले सेशन हुआ उसमें आपने कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क पढ़ा है। मैं थोड़ा एग्जांपल से आपने जो भी नॉलेज दी है उसको थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, वाइटल बायोटेक का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर है। अब अगर आप इनका ये देखें तो यहाँ पर आपके एक आध सेशन हुए हैं और उस सेशन में अगर आपको समझ आया है तो यहाँ पर इन्होंने टीएम लिख रखा है, तो यहाँ इन्होंने आर लिख रखा है। तो क्या आपको और हमको क्लियर है कि व्हाट इज टीएम एंड व्हाट इज आर? और यहाँ पर इन्होंने एक टैगलाइन लिख रखी है, कनेक्टिंग इमर्जिंग रिसर्च। ये क्या है? तो क्लियर है आप लोगों को या नहीं है कि व्हाट इज टीएम, व्हाट इज आर? क्योंकि इससे तो हम पिछले 7 रोज से इस लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बार बार हम इस लोगों को देख रहे हैं। जैसे ही हमारी क्लास या सेशन शुरू होता है तो सबसे पहले यही लोगो बीच बीच में दिखाई देता है। तो मुझे लगा कि इसी को एक्सप्लेन किया जाए कि ये इनका ट्रेडमार्क कह सकते हैं। अब इनका ट्रेडमार्क बहुत इन्होंने वाइसली बनाया हुआ है, अगर आप देखें तो, कि यहाँ पर इन्होंने वी लिखा है, फिर ये बी के बाद बी लिखा है, और इसको तो टीएम कर दिया। अब क्यों करा टीएम, इनको तो पता होगा कि हमने टीएम क्यों करा। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है वाइटल बायोटेक पब्लिकेशन, जिसको कि इन्होंने लिखा है आर। अब या तो ये हो सकता है कि दो चीजों को इन्होंने पूरा मिलाया है, या फिर हो सकता है कि दोनों चीजें अलग अलग हो, एक टैगलाइन भी दे रखी है। तो क्या हमको और आपको इनका ट्रेडमार्क समझ आ रहा है? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? अगर आप ट्रेडमार्क के सेशन में अगर ये सब क्लियर हुआ है तो हम बता सकते हैं कि व्हाट इज टीएम, व्हाट इज आर एंड व्हाट इज दिस टैगलाइन। सो मैं कोशिश करूंगी, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार हम भी गो थ्रू हो जाते हैं। ये तो हम सबको पता है, स्विगी का जो है ट्रेडमार्क है, ये ऑरेंज है, ये मैकडोनल्ड है। अब आप, मैं इसलिए दिखा रही हूँ ये, मैं आपको ट्रेडमार्क नहीं दिखाना चाह रही, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर ये आर लिखा हुआ है, यहाँ ये टीएम लिखा हुआ है। ये चीज बहुत समझने वाली बात है। ये तो पीमा का हम सबको पता है। दिस इज अमेजोन, हम सब दिन भर शॉपिंग करते हैं। एंड ये कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ इन 3 4 जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। स्विगी में कुछ नहीं लिखा, प्यूमा में कुछ नहीं लिखा, और ये ठंड कोको कोला में कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगी लिखा हुआ है। और अमेजोन में भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ जो ऑरेंज ये कुरियर कंपनी टीएम लिखा हुआ है, मैकडोनल्ड में आर लिखा हुआ है। क्यों भाई? पहले आप ये समझ लें कि ट्रेडमार्क क्या होता है। कोई भी साइन हो सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेडमार्क यहाँ दिख रहे हैं, रजिस्टर्ड टीएम एप्पल का दिख रहा है, मैकडोनल्ड दिख रहा है, ये जो है ट्विटर का दिखाई दे रहा है। कोई भी सिंबल्स हो सकता है, कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि डेस्क टू डेस्क सर्विसेज का अपना है। कोई भी जो है ऐसी चीज जो कि अपने आप में एक दूसरे को डिफरेंस करे, वो सब ट्रेडमार्क में हो सकती है। सिर्फ मार्क भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई चित्र भी हो सकता है, कोई ड्राइंग भी हो सकती है, कोई टैगलाइन भी हो सकती है। ट्रेडमार्क में सारे आते हैं। अब
क्यों हम करें ट्रेडमार्क, क्यों हमें जरूरत आ रही है, हम क्यों, हम तो नहीं करना चाहते। हमने अपने जो है स्कूल का, कॉलेज का, कुछ भी, या हमारी कोई घर में किसी का कोई बिजनेस है, कोई किसी का आई स्टार्ट है, तो है, हमको जरूरत ही नहीं है, हम नहीं करना चाहते। करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? कि आपका जो ब्रांड होगा उससे जो है सबसे पहले लॉयल्टी बढ़ेगी। लॉयल्टी बढ़ने के बाद, जब लॉयल्टी बढ़ जाएगी तो सेल्फ एंड सेफ और सिक्योर हो जाएंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ेगी, और फेथ बढ़ेगा। आज हम अगर कोई ब्रांड लाते हैं, या ब्रांड नहीं भी लाते, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बर्गर खाने गए तो पिज्जा हट पे गए, या हम मैकडोनल्ड पे गए, या डोमिनोज पे गए, तो हर एक का अपनी पसंद है। किसी को डोमिनोज का बर्गर पसंद है, किसी को मैकडोनल्ड का पसंद है, किसी को केएफसी का पसंद हो सकता है, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो केएफसी का पसंद होता है। तो यानी कि ब्रांड से हम डिसाइड कर लेते हैं कि उस ब्रांड का होगा तो अच्छी प्रोडक्ट होगा। अगर एप्पल का लैपटॉप है खरीदूंगी मैं, तो आंख मीच के मैं दुकान पे ज्यादा इंक्वायरी भी नहीं करूंगी, क्योंकि ब्रांड पे हमारा फेथ है, दुकान पे फेथ नहीं है हमारा। तो जो फेथ किस पर है? ब्रांड पर है। तो आपका ब्रांड या आपका जो ट्रेडमार्क है वो आपको फेथ देता है, और ब्रांड के नाम पर हम पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। आपने खुद ने महसूस करा होगा कि आप किसी मॉल में जाते हैं तो आप वहां बार्गेनिंग, क्योंकि आपको फेथ है। लेकिन आप वही चीज फॉर द रिलायंस के आप मॉल में गए और वहां पर आपने एप्पल 100 रुपए किलो खरीदे, तो वहां आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी फूड वाले पे आप खरीद रहे हैं तो आप वहां 100 रुपए के कहेंगे, नहीं नहीं ये तो 80 में मिल जाएंगे, 60 में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रिलायंस की ब्रांड पर फेथ है। वो जो ठेले वाला है, जो फ्रूट वाला है, उसका कोई ब्रांड नहीं है, हमें उस पर फेथ नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो सेफ और सिक्योर नहीं है, उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। तो ब्रांड जब हम रजिस्टर करा लेते हैं, ट्रेड का हम रजिस्टर कराते हैं, ट्रेडमार्क का, तो वो सब चीजें उससे जुड़ जाती हैं। और जब अनरजिस्टर्ड होगा तो ठीक है, जो है कॉपी कैट हो सकता है। वही हम कोई चीज खरीदे कि एप्पल का फोन हमने जो है एप्पल की शॉप से ना खरीद के कहीं और से खरीदा, तो कॉपी कैट हो सकता है। उसका हमारा जो है ट्रस्ट इशू रहता है उस पर, और उसकी इनस्टेबिलिटी, डिस्प्यूट हो सकते हैं, अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। तो इसीलिए ट्रेडमार्क जरूरी है। ये हिस्ट्री है ट्रेडमार्क की, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। ये बता ही दिया मैंने आपको। यस, अभी अभी मैंने कहा कॉपीराइट। मैंने यहाँ कहा कि कॉपीराइट होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए, तो भाई अंतर क्या है? कॉपीराइट में अंतर क्या है, ट्रेडमार्क में बहुत, एक हम कहना पतली सी लकीर है दोनों के बीच में, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में। कॉपीराइट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल्स हु क्रिएट, जो कि क्रिएट कर रहा है, और ट्रेडमार्क जो है यूज ऑफ कंपनी नेम, इट्स प्रोडक्ट नेम, ब्रांड आइडेंटिटी और स्लोगन को से जो है प्रोटेक्ट होता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वाइटल बायोटेक, तो वाइटल बायोटेक का अपना ट्रेडमार्क है। तो वाइटल बायोटेक का वो ट्रेडमार्क किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वाइटल बायोटेक की जो जितनी भी इनकी एसोसिएशन है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वाइटल बायोटेक वाले कोई किताब निकालते हैं और उस पर कोई ऑथर है, तो वो किसको करेगा? सिर्फ उस ऑथर को प्रोटेक्ट करेगा, और वो किस में आएगा? कॉपीराइट। एक ही चीज है या नहीं? दोनों ट्रेडमार्क किसी प्रोजेक्ट के लिए काम में लिए जा रहे हैं, और कॉपीराइट मैंने एग्जांपल इसीलिए वाइटल बायोटेक का दिया है कि ये एक इनका अपना ब्रांड नेम भी है और एक इनका अपना पब्लिकेशन भी है। तो पब्लिकेशन की जब बात होगी तो वहाँ कॉपीराइट की बात होगी। लेकिन अगर ये कोई और काम कर रहे हैं तो वहां इनका ट्रेडमार्क जो ये काम में लेते हैं, जो लगाते हैं, तो वो ट्रेडमार्क है। तो दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं, एक जैसी चीजें नहीं है। जबकि दिखने में ऐसा लगता है कि ये नाम ही तो एडिडास लिखा है, एनबीसी लिखा है, पेप्सी लिखा है, तो इनका कॉपीराइट भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कि नाम का कॉपीराइट होता है, कोई चीज लिखता है तो कॉपीराइट होता है, नहीं। अगर वो किसी ब्रांड से जुड़ा हुआ है, किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, देन इट कम्स इनटू द ट्रेडमार्क। एंड वी व्हेन वी टॉक अबाउट एनी राइटिंग पर्पस और द म्यूजिकल और आर्टिस्टिक और द ड्रामेटिक पर्पस, देन वी गो फॉर द कॉपीराइट, अदरवाइज वी गो फॉर द ट्रेडमार्क। ठीक है? अब अंतर क्या है? ट्रेडमार्क जो है वो प्रोड्यूसर की जो भी प्रोडक्ट है उस कर रहा है, क्रिएशन को करता है, लोगोस हो सकते हैं, नेम हो सकता है, स्लोगन, सिंबल, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, और जितना भी लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, वो कॉपीराइट में आता है।
अनलिमिटेड रिन्यूअल्स होते हैं। यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, ट्रेडमार्क का हमें रिन्यूअल कराना पड़ता है बार बार, जबकि कॉपीराइट में ऐसा नहीं है, वो हमें मिलेगी और 70 साल बाद मिलेगी। रजिस्टर विद द यूएसपीटीओ होता है और इसमें ऑटोमेटिक क्रिएशन होता है। एक ये, हाँ एक चीज मैं भूल गई कॉपीराइट में बताना, कि कॉपीराइट आप जैसे ही आप कोई चीज लिखते हैं ना, या कोई डायग्राम बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं, वो कॉपीराइट आपका हो जाता है। आपको उसको रजिस्टर कराने की चाहे तो कराएं चाहे तो नहीं कराएं, लेकिन सेफ साइड ये है कि आप आजकल क्योंकि डिजिटल चीजें हैं, तो आज अपने आप को ही मेल कर दें और नीचे लिख दें डेट और अपना नाम लिख दें, तो वो जब भी आपको कोई ऐसा डिस्प्यूट आएगा तो वो मेल, क्योंकि मेल पर टाइम और डेट सब लिखा रहता है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो कॉपीराइट आप चाहें तो रजिस्टर कराएं चाहे तो ना कराएं। रजिस्टर्ड टीएम फॉर द अनरजिस्टर्ड, यहाँ देखिए जो मैं बता रही थी, ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड है तो आर लिखा हुआ लिखाएंगे ऊपर, और अनरजिस्टर्ड है तो टीएम लिखा हुआ है, और कॉपीराइट का सिंबल आपको पता है। Protects against the confusion in the marketplace and the protects against the unauthorized production. Must be distinctive and non-descriptive और must be original and possess some degree of creativity. ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ट्रेडमार्क क्या हो सकता है? कोई भी डिजाइन हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी साउंड हो सकती है, कोई भी कलर हो सकता है, स्लोगन हो सकता है। इसके एग्जाम्पल एक आध मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल बताया होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। नेम कोको कोला लिखा हुआ है, ये इसका ट्रेडमार्क है। ये पीमा इसका जो है कोई लोगो टाइप हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्लोगन नीचे लिखा आई एम लविंग इट, तो ये भी इसका क्या है, ट्रेडमार्क है। शेप अगर हो सकती है उसका भी ट्रेडमार्क होगा, और कलर अगर कोई चीज का है, तो ये यहाँ टीएम लिखा है ना, यानी कि रजिस्टर्ड है या नहीं, अब आपको आ गया होगा। ये देखिए जब मैंने बताया था कि जो ये टीएम लिखा है, आर लिखा है तो रजिस्टर्ड है, और टीएम मतलब अनरजिस्टर्ड है। ये कोई भी शेप मार्क हो सकता है, ये बॉटल है आपको दिखाई देता है, लोगो सिंबल हो सकता है, ये भी ट्रेडमार्क हो सकता है। कलेक्टिव मार्क्स जैसे आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स पे जो है गाड़ी पर, या वो अपने लिए एक लोगो यूज करते हैं, तो वो भी ट्रेडमार्क है। जैसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो भी अपना यूज करते हैं, कोई भी कलेक्टिव मार्क भी हो सकता है। सीरीज मार्क्स हो सकता है, जैसे कि मैकवेजीज, मैकडोनल्ड, इनकी अपनी सीरीज है, तो वो भी जो है ट्रेडमार्क में आता है। सर्टिफिकेशन, एफएसएसआई, जो भी सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि कोई भी हम यूज करते हैं, तो वो सब चीजें जो है सर्टिफिकेट होता है, वो भी ट्रेडमार्क में आता है। वर्ड्स एंड सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ये एसबीआई का सिंबल आपको नजर आ रहा है। डेस्क टू डेस्क सर्विसेज है, कुरियर सर्विसेज, इनका भी ये सब सर्विस मार्क है, जो कोई प्रोवाइड कर रहा है ना सर्विस, और अगर फिर वो अपना ट्रेडमार्क लेता है तो वो सर्विस मार्क में आता है। हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। वैसे तो थोड़ा बहुत मैंने बता ही दिया है कि टीएम अगर लिखा हुआ है तो जो है अभी उसका क्या होना है, रजिस्ट्रेशन बाकी है। और एसएम अगर लिखा हुआ है तो वो सर्विस मार्क है, जैसे कि डेस्क टू डेस्क सर्विसेज है ना, यहाँ पर एसएम लिखा हुआ है सर्विस मार्क, और आर का मतलब है कि रजिस्टर्ड हो चुका है। ये तीनों आप चीजें ध्यान रखें। अब देखिए उसको मैं आप क्लियर कर देती हूँ। ये टीएम है इनका, ये रजिस्टर्ड है, ये वाला वाइटल बायोटेक इनका रजिस्टर्ड है, और ये अभी तक अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। गूगल अभी तक अनरजिस्टर्ड है। एकदम सही मैम, जीमेल जो अभी लिखा हुआ है प्रोसेस ना, में ही है वो। जीमेल। वाइटल बायोटेक का जो है वो चल। 10 ईयर हाँ, हो चुके थे, इसलिए वो रजिस्टर्ड हो चुका है। हाँ, वैसे जरूरत भी नहीं है कि आप टीएम लिख देते, मतलब वो हमारा है। हाँ, वो कवर ठीक कर है ना। लिया एक्चुअली, एक दो बार कहीं हाँ, ऐसे दिक्कत नहीं आ जाए, इस वजह से दोनों हाँ, को दिक्कत प्रोटेक्ट नहीं कर आएगी, दिया। वो तो प्रोटेक्टेड, टीएम लिखने का मतलब ही प्रोटेक्ट हो गया वो तो। यस यस। ठीक है ना। अब आप देखिए जीमेल अभी भी टीएम लिख रहा है अपने में, है ना, और ये ऐसे में लिख रहा है एग्जाम्पल जो है, यानी कि सर्विस मार्क है वो, लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराएं, लेकिन लिखने से क्या होता है कि उस पर हमारी ऑथोरिटी, उसका राइट हमारे पास रहता है। अब ये देखिए स्टारबक्स है, इसका रजिस्टर्ड है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि टीएम का मतलब क्या है, एसएम का मतलब क्या है, और आर का मतलब क्या है। गूगल के पास भी अभी तक टीएम है, गूगल भी अभी तक रजिस्टर नहीं कराया उन्होंने। तो ये थोड़े से एग्जांपल मैंने आपको बताया। अच्छा, ट्रेडमार्क लोगो, हम कहते हैं कि लोगो जो है वो ट्रेडमार्क में, तब क्या डिफरेंस है लोगो और ट्रेडमार्क में? लोगो डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अगर आप लोगो बना लेते हैं, आपने देखा होगा कि कई दुकानदार अपने लोगो बना लेते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो ट्रेडमार्क आपका नहीं है, वो किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए लोगों का जब तक जो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो ट्रेडमार्क में नहीं आएगा, और उसका यूज मिसयूज हो सकता है।
क्या क्या रजिस्ट्रेशन, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वैल्यू इन द मार्केट होगी, स्पेशल स्टेटस आपको मिलेगा, यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, गुडविल एंड ट्रस्ट मिल जाएगा और ग्लोबल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। ये कुछ बेनिफिट है जो कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हो सकते हैं। अब आप ऑनलाइन करा सकते हैं इसको किसी भी स्थिति में, और अभी हाल फिलहाल जो इसकी फीस है वो 5,600 रुपये समझ लें, और 10 ईयर की आपको वैलिडिटी मिलती है, फिर आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। और इंटेंजिबल एसेट होता है ये, और आपकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये कुछ कारण है। रजिस्टर्ड, ये तो मेरे ख्याल में कल हो गया होगा कि किस तरह से आपको मिलना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है चाहिए वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, कॉपी और लोगो चाहिए, साइन फॉर्म होता है 48 नंबर का, वो चाहिए हमें, और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होता है वो चाहिए हमें, और पार्टनरशिप अगर किसी के साथ है या डील अगर किसी के साथ की तो उसका भी जो एग्रीमेंट आपको चाहिए होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होंगे। ये प्रोसीजर है। वैसे आप पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं सब चीजें, और वहाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आजकल ऑफलाइन अगर आपको टाइम नहीं है कुछ करने का तो आप ऑनलाइन जाके कब सब काम कर सकते हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क सर्च, किसी भी, चाहे कॉपीराइट करें, ट्रेडमार्क करें, चाहे पेटेंट करें, सर्च करेंगे। उसके बाद चूजिंग द राइट क्लास ऑफ, आप कौन से ट्रेडमार्क कौन सी क्लास में होना है, सर्विस मार्क है या, जैसे मैंने आपको कई तरह के बताए थे, तो उनमें से कौन से क्लास में आपको होना है वो। और उसके बाद एप्लीकेशन आप भर देंगे, और फिर ऑब्जेक्शन एग्जामिनर होते हैं इस पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम एज ए फैकल्टी मेंबर बात करते हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं कि पेटेंट एजेंट जो है वो पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, तो वहां भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और पेटेंट एजेंट बन सकते हैं। वो एग्जामिनर होगा आपका, उसके बाद कुछ अगर अपोजिशन आया है या कुछ जो है इंक्वायरी आई है, तो वो आप क्लियर कर दें, ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाएगा और आपको ट्रेडमार्क अपना मिल जाएगा। सबसे पहला जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो जो है इंडिया में कोलकाता में रजिस्टर्ड हुआ था। ये थोड़ी सी जानकारी कि ब्लैक एंड व्हाइट डिवाइस था जो कि जेम्स बुक्शन एंड कंपनी के द्वारा किया गया था। अच्छा, कि हम जा रहे हैं नहीं देना, नहीं कह रहा है दोहरा लिया, ये देख लिया, अभी देख लिया, हम तो पूरा, क्योंकि हम, मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो एट ग्लांस चीज को देखता है। पढ़ते तो हम बाद में, हरा रंग दिख रहा है मीन्स ये बिस्लरी है, लेकिन आप देखिए यहाँ बिस्लरी की कितनी कॉपीज है। तो आज के बाद आप बिस्लरी लें तो प्लीज रुके। आप रेल नीर भी लेंगे तो बोलेंगे बिस्लरी, क्योंकि हमारे दिमाग में बिस्लरी ब्रांड सेट हो रखा है कि भाई अगर ड्रिंकिंग वाटर है मीन्स बिस्लरी। ऐसा नहीं है। वो ब्रांड नेम जब अपने एक तरह से कहे इतना सब चीजों को खत्म कर देता है, और वो ब्रांड नेम बिस्लरी जो है ड्रिंकिंग वाटर बन गया, तो चाहे हम रेल नीर पी रहे हैं, चाहे हम कुछ और भी पी रहे हैं, हम उसको कहेंगे बिस्लरी। और बिस्लरी की कितनी डुप्लीकेसी आ रही है आप देख सकते हैं। पहली नजर में देखेंगे तो हमें सब एक ही नजर आएगा, लेकिन हर जो है पानी बॉटल का बिस्लरी नहीं होता है। तो आज के बाद हम देखें कि क्या हम पी रहे हैं क्या नहीं पी रहे। ये देखिए कुछ प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए, हाइड एंड सीक के, जो कि रेगुलर हम काम में लेते हैं, कॉपी होती है इनकी, एप्पल का है इसकी। ये देखिए, एक एक और चीज कह रही हूँ कि कोलगेट हम जाते हैं तो हमारे शहरों में तो फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन गांव में कोलगेट, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट होता है। कोलगेट दे देना, अब चाहे वो पतंजलि दे रहा है, चाहे वो क्लोजअप दे रहा है, चाहे कोई और ब्रांड दे रहा है, लेकिन वो ले क्या रहे हैं, उनके दिमाग में क्या, पेस्ट मतलब कोलगेट। तो ये ब्रांड नेम कितना छा जाता है, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कोको कोला की कौन सी बॉटल सही है, आप पहचान सकते हैं क्या? अब आपको अगर कोको कोला की बॉटल पता होगी तो ये वाली सही है और ये वाली क्या है, गलत है। ये देखिए, फैट कोलगेट और कोलगेट, दोनों में आपको अंतर एक बार में दिखेगा ही नहीं कि क्या अंतर है, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। स्प्राइट हम पीते हैं, पता ही नहीं है कि ये वाली स्प्राइट जिसपे डॉट डॉट बन रहे हैं, बॉटल की शेप ये है, और ये तो कौन सी सही है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ट्रेडमार्क हर चीज का। ये मैकडोनल्ड्स है, लेज हम बहुत खाते हैं, आप देखिए, आप दो दूर से दिखने में लेज लेज सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये लेज असली है और ये लेज डुप्लीकेट है। ड्यूरासेल हम काम में लेते हैं, ये देखिए ये ड्यूरासेल, और ये वाला असली है और ये वाला नकली है। अब देखिए यहाँ पर इसने माइनस लगा दिया बस, और कुछ भी नहीं करा, और ये असली वाले में माइनस नहीं है। ये कुछ, अच्छा ये लोगो, अब मैं कह रही थी ना कि लोगो और ट्रेडमार्क में अंतर है।
जब एप्पल की शुरुआत हुई तो 1976 में ये इनका लोगो था, फिर 1977 में इन्होंने बदला, फिर 1995 में ये हुआ, और फिर 1998 में जाके इन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क लिया, तो अब ये इनका ट्रेडमार्क हुआ। तो आप देखेंगे कि कई बार इनके एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर ये लगा रहता है, तो वो असली है, नकली नहीं है, क्योंकि ये लोगो शुरुआत में लोगो यहाँ से बना था, ये इनका लोगो था, धीरे धीरे आज की स्थिति में ये लोगो आया है। तो लोगो और ट्रेडमार्क में डिफरेंस है, यानी कि ये लोगो अब किसमें पे चेंज हो गया, ट्रेडमार्क में चेंज हो गया। ये देखिए गूगल और गूगल, गूगल जो कंपनी है उन्होंने गूगल को कॉपी करा, तो गूगल वालों ने क्लेम करा कि इसको नाम से ये संदेह हो रहा है कि भाई ये गूगल है, तो बाद में ये जीत भी गए और गूगल को अपना नाम बदलना पड़ा है। कुछ एग्जांपल है, मेरे ख्याल में टाइम काफी हो गया है। ये ट्रेडमार्क है, एलपेनली भी हम सब खाते हैं, ये असली नकली दो चीजें हैं। सोनी के देखिए SONY लिखा है या HQNY लिखा है, ठीक है ना, कलर में भी अंतर है। अब ये आप बता सकते हैं ये पूरा पूरा बर्गर है, ये है, तो कौन सा ट्रेडमार्क है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, जो कि वर्ल्ड वाइड देता है, मैकडोनल्ड ट्रेडमार्क। अब देखिए प्यूमा के कितने सारे नकली है, ये पूमा है, नाइक के देखिए, नाइक ओरिजिनल है, ये नाइक डुप्लीकेट है, ये स्टारबक्स ओरिजिनल है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने आर रजिस्टर लिख रखा है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूर से देखने पे क्या लग रहा है, स्टारबक्स लग रहा है, तो ये नकली है। तो इस तरह से हम बच सकते हैं नकली चीजों को खरीदने से। ये आप फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसमें आपको ढूंढना है ये कौन कौन से ट्रेडमार्क है, एक ऊपर आपको दिख ही रखा है अमूल जो मैंने दिखा है, ये देखिए मैकडोनल्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा गेम है, हमारे पास टाइम नहीं है, सो खत्म करें मानी मैम? Ma'am, yes, ma'am, if we हाँ, can conclude. कंक्लूड ना, तो क्वेश्चन दिस इज आंसर ऑल देख लीजिए अबाउट एक अब। बार। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैम जीआई का थोड़ा समरी हो सकता है क्या कुछ, या? 10 मिनट लग जाएंगे। हाँ कोई नहीं, 10 मिनट तो चलेंगे अगर हो जाए तो। ये किसी ने नहीं बताया अभी तक। यही नहीं हुआ क्या अभी? ये भी इम्पोर्टेंट टूल है। चलिए, हाँ जीआई बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, स्पेशली कि जब जिस जगह पर हम रह रहे हैं ना, आसपास में अगर कोई जीआई का प्रोडक्ट होता है तो वो हमारी आइडेंटिटी को बताता है। तो देखिए दार्जिलिंग बताइए जो मैम। है टी थी, इसको सबसे पहले जीआई मिला था। और मधुश्री चाय, में कोटा में रहती हूँ, तो मधुश्री चाय ये आपने देखा होगा, ये ताले किस कहाँ के फेमस है, अलीगढ़ के ताले। तो अलीगढ़ के ताले, बनारसी पान, यानी कि कोई भी चीज जुड़ी हुई है अगर किसी लोकेलिटी से या किसी ज्योग्राफी पार्ट से, तो वो सब जीआई में आती है। आप देखिए यहाँ पर, ये आगरे का पेठा हम सब जानते हैं, और हर गली में आगरे का पेठा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आगरे का पेठा नहीं है। आप आगरा जाके जो आगरे का पेठा ला रहे हैं वो आगरे का पेठा है, भले ही आगरे की किसी गली से ला रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आगरा के साथ जुड़ा हुआ है, वो आगरे का पेठा है। लेकिन अगर आपके शहर में कहीं लिखा है कि आगरे का पेठा दिया जा रहा है, तो वो आगरे का पेठा नहीं है। इसी तरह से बीकानेरी भुजिया, बीकानेर में जो बनेगी वही बीकानेरी भुजिया कहलाएगी। हम और आप अपनी जगह पर अगर कोई नमकीन बनाकर उसको बीकानेर के नाम से बेचना चाहे तो वो संभव नहीं है। अब देखिए ये जीआई का, अब मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रही हूँ कि हम बार बार कहते हैं ना आईपीआर अवेयरनेस, आईपीआर। आप देखिए सरकार ने जो है जीआई का लोगो जो है 2017 में लिया है। और आजकल तो क्या हो गया, आपने पढ़ा भी होगा अखबार में, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। जैसे कोटा में है तो कोटा डोरिया की जो कपड़ों का स्टॉल है वो जो है स्टेशन पे लगा हुआ होगा। आगरा आप जाएंगे तो आगरा के जो है पेड़े का जो है पेठे का जो है शॉप लगा हुआ होगा। अगर आप बनारस जाएंगे तो बनारसी साड़ियों का या बनारसी कपड़ों का लगा हुआ होगा। तो जीआई टैग किसी भी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए संकेत के रूप में होता है। भौगोलिक उत्पत्ति इनकी विशेष होती है, उस जगह की स्पेशलिटी उनमें होती है। कुछ भी हो सकता है, कृषि से संबंधित, जैसे सोजत की मेहंदी, बहुत सारी इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहला जो टैग, जो जीआई टैग था, वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, 2005 4 5 में पहला जीआई मिला था। यानी कि आप समझ सकते हो हम कितनी देर बाद जागे। किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिल सकता है, नेचुरल वुड्स को मिल सकता है, हैंडीक्राफ्ट को मिल सकता है, किसी भी इंडस्ट्री को मिल सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो सकती है उनको मिल सकता है, फूड स्टफ को मिल सकता है। इसका जीआई एक्ट है जो कि 1999 में सामने आया था। लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है,
कौन कौन एक एक बात और है कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीजें अकेले को मिल सकते हैं, लेकिन जीआई जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक, एक ग्रुप को मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, और वो ही उसके ऑथराइज्ड यूजर होते हैं। अकेला व्यक्ति अगर चाहे कि मुझे जीआई मिल जाए तो वो संभव नहीं है। भारत में अभी तक कुल जीआई जो है 547 मिल चुके हैं, राजस्थान में टोटल 21 है, और ये 2023 में 5 जीआई टैग मिले, और अभी 25 में भी 3-4 मिल गए हैं। ये कुछ हमारा राजस्थान के फेमस जीआई है और रजिस्टर्ड। अच्छा, एक बात और है, जीआई है ना, सिर्फ इंडिया को ही नहीं मिलता है, कोई बाहर से आके भी जीआई करा सकता है। जैसे फ्रांस के चैंपियन ने करा रखा है जीआई इंडिया में, इसी तरह से यूके का एक है जिसने कि स्कॉच विस्की को जीआई करा रखा है। आयरलैंड की एक जो है आयरिश विस्की को जीआई इंडिया में करा रखा है। ये एक अलग है हर चीज से। आपने देखा होगा कि पेटेंट तो हम बाहर जाके कराते हैं, लेकिन इंडिया में आके जो है दूसरे देश की कंट्रीज के प्रोडक्ट अपने आप को जीआई रजिस्टर्ड कराते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आके अपने प्रोडक्ट को जीआई कराकर उनको इम्पोर्टेंस देते हैं और मनी मेकिंग करते हैं। तो जब बाहर की देश आके करा सकते हैं तो हमें तो कराना ही चाहिए। ये अभी सोजत मैगी को मिला, इस तरह से बहुत सारे हैं जो क्रेडिट, जो कि जीआई जिनको मिल चुका है, जो बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। गोवा फिनी है, मैसूर संदल ऑयल है, संदल सोप है, खुर्जा की पोएट्री, लखनऊ के जो हम कपड़े पहनते हैं लखनऊ चिकनकारी, को जीआई मिला है। फिरोजाबाद के जितने भी ग्लास प्रोडक्ट है, लखनऊ की जरदोजी, ये बहुत सारे आर्ट है जो कि, ये कुछ है जो कि कोटा में अभी तक सिर्फ कोटा जो है कोरिया को ही मिला है। लेकिन कुछ ऐसे, मेरा इस दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को पहचानने की कोशिश करें कि आपके यहाँ कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि हर शहर की कोई ना कोई पहचान होती है। तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं उसको जीआई दिलाने की? तो सबसे पहले हम अगर समझ जाएं कि जीआई क्या है, तो हम कोशिश कर सकते हैं अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप थोड़ा अपने आसपास देखें कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी स्पेशलिटी है, चाहे कुछ भी चीज हो सकती है, चाहे वो फल हो सकता है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसको जीआई दिलाने का प्रयास आप 10-15 जनों की कोई सोसाइटी बना लें, उसको लीड आप करें, और उनसे जो है डॉक्यूमेंटेशन लेकर और फिर आप उसको जीआई लेके जा सकते हैं। ये अलग अलग है, ये इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रसगुल्ला। हम सब खाते हैं, जब भी कहते हैं बंगाल का रसगुल्ला। अब क्या हुआ, बंगाल का रसगुल्ला हुआ तो ममता बनर्जी ने इस पर जो है अपना जीआई टैग लेना चाहा और मिला भी उनको। लेकिन बाद में उड़ीसा ने जो है इस पर क्लेम करा कि नहीं नहीं, रसगुल्ला सिर्फ बंगाल का थोड़ी है भाई, हमारे यहाँ तो जगन्नाथ जी की पूजा होती थी, उसमें प्रसाद के रूप में रसगुल्ला चढ़ाया जाता था। तो उनकी काफी लड़ाई चली कोर्ट में, और बाद में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि रसगुल्ला दोनों का है, ना तो उड़ीसा का ना सिर्फ बंगाल का, दोनों जो है अपना नाम, रसगुल्ला के आगे उड़ीसा का, उड़ीसा भी अपना नाम लगा सकता है और बंगाली रसगुल्ला भी लगा सकता है। अब आप कहेंगे भी अंतर क्या है बंगाली रसगुल्ले और उड़ीसा के रसगुल्ले में? तो सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। वेस्ट बंगाल का जो रसगुल्ला होता है उसको रसगोल्ला कहते हैं, RASAGUEELA, और ये जो उड़ीसा का है वो RASAGOLA। और इसका जीआई टैग मिला है उड़ीसा रासोगोला, और इसको बंगला रसगुल्ला। शक्ल में भी देखिए अंतर, ये ब्राउन कलर का होता है, ये जो है व्हाइट कलर का होता है। डिफरेंस क्या है? स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में है। और ये व्हाइट रसगुल्ला, तो बंगाल का अगर रसगुल्ला खाना चाहते हैं आप तो रसगुल्ला बोलेंगे और व्हाइट कलर का होगा। और अगर आप उड़ीसा का रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो वो व्हाइट से डार्क ब्राउन होगा और रसगोला होगा, यानी कि रस भरा हुआ है। लेकिन अब जो है बंगाल नहीं कह सकता है कि रसगुल्ला बंगाली ही है, उड़ीसा वाले भी जो है रसगुल्ला के आगे अपना नाम लगा सकते हैं। ये कुछ इंडियन ग्लोबलाइजेशन हुआ है जिनका। जब फर्स्ट जीआई इंडिकेशन की जो स्टोर खोला गया वो जो है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोला गया ताकि लोगों को जेन्युइन प्रोडक्ट मिल सके। तो अब मेरा तो ये, मैंने पहले ही कहा कि आप अपने एरिया को आइडेंटिफाई करें, उसमें जीआई अगर कुछ मिलता है तो आप कर लें। सो नाउ अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बताएं। You have any query you can ask. थैंक यू मैम। This is all from my side. यस मैम। मैम कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपने ये एक तो जो कॉपीराइट वाला बात चली थी उसमें कि हम्म हम
जो है कुछ किसी का भी कोई यूज नहीं कर सकते, जैसे वो एक आपने झंडू बाम वाला एग्जांपल दिया। हाँ हाँ अब बहुत बिल्कुल। सारे, हाँ बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स आते हैं जिसमें हम किसी सेलिब्रिटी का नेम किसी ने यूज किया होता है, तो उनको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, मैंने आपको कहा था नाम नहीं, नाम का कॉपीराइट नहीं होता। नाम आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो उनका ब्रांड नेम था झंडू बाम, है ना। तो जैसे मान लो मैं अमिताभ बच्चन जी का नाम तो यूज कर सकती हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन जी की वॉइस को काम में नहीं ले सकती, या उनके हरवंश राय बच्चन जी की कोई पोएट्री उसको काम में नहीं ले सकती। नाम को मैं काम में ले सकती हूँ, लेकिन कोई प्रोडक्ट है, कोई ट्रेडमार्क है, तो उसको मैं काम में नहीं ले सकती, क्योंकि नाम का कोई कॉपीराइट नहीं करा सकता। यस मैम। कोई और अनम्यूट अनम्यूट करके भी कोई पूछ सकता है, मैंने कर दिया हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हिमानी हेलो आप देख मैम। लेना। हेलो मैम। हाँ बताएं। मैडम आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, पूछे आप। हाँ मैडम, अगर हम एक पैटर्न बना रहे हैं और वो पैटर्न बनाते वक्त अगर कुछ नोट्स भी कॉपीराइट करना चाहते हैं, जो कॉपी हम यानी पैटर्न के लिए जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, और वो नोट्स अभी अगर कॉपीराइट कर रहे हैं, और एक साथ अगर मान लो मैडम कोई एक प्रोडक्शन कंपनी आयुर्वेदिक या फिर जो वनस्पति कंपनियां होती है जो औषध दवाई बनाती है, हम्म। अगर उनको सेल करते हैं, तो मैडम ये एक एवरेज कितना अमाउंट में सेल हो सकता है? देखिए, सेल एक अलग चीज है। सबसे पहले तो पेटेंट और कॉपीराइट में अंतर देखिए। पेटेंट होगा किसी प्रोसीजर का। मान लिया जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप किसी औषधि का निर्माण कर रहे हैं, तो वो जो औषधि का निर्माण कर रहे हैं, वो जो प्रोसीजर है, वो होगा पेटेंट। ठीक है ना। उसको आप क्या कराएंगे? पेटेंट कराएंगे। लेकिन अगर जो आप औषधि का नाम रख रहे हैं, मान लो मैंने उसका नाम रख दिया कोई XYZ, कुछ भी नाम रख दिया, तो उसका क्या होगा? कॉपीराइट। अब आप कह रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, तो पेटेंट में पहली बात तो आपके नोट्स की कोई रिक्वायरमेंट पेटेंट में नहीं है। पेटेंट एक तरीका होता है जिसमें कि एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, और उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। तो वहां पर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो कॉपीराइट आप कहीं से नकल करके कोई कहानी या कविता तो आप नहीं लिख रहे। आप तो किसी औषधि को बनाने का प्रोसीजर लिख रहे हो, और प्रोसीजर आइडिया होता है, और आइडिया का क्या होता है? पेटेंट होता है, ना कि कॉपीराइट होता है। लेकिन अगर आप उस पर आधारित कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करा रहे हो, तो वो किस में आएगा? कॉपीराइट में आएगा। तो मैडम अगर ये पेटेंट फिर अगर कोई कंपनी को दे रहे हैं, बिकॉज मैडम हम्म एक 50% वर्क प्रोग्रेस में आ चुका है हमारा। हम्म हम्म। एक ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो हाँ अभी एक ठीक साल है। के अंदर पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो हाँ हाँ अगर ठीक ये है। सेल हो रहा है या कोई कंपनी अगर हम सर्च करते हैं जो हमारा पेटेंट ले और वो प्रोडक्शन चालू करे, तो हम्म। आपको क्या लगता है एवरेज इनकम कितना आ सकता है उससे? भाई ये एनी देखो, केसेस? ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मान लो मैंने कोई चीज ऐसी बनाई जो कि पेटेंटेबल है, मैंने उसका पेटेंट इंडिया में करा लिया या फॉरेन में करा लिया, कहीं भी करा लिया। अब वो क्योंकि मेरे नाम है, उसको लेके बिना जो है मेरे से बिना पूछे उसको काम में नहीं ले सकता, और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो डिपेंड करेगा कि उस पेटेंट की वैल्यू कितनी है, सामने वाले के लिए कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड था, कोविड में वैक्सीन बनी, तो कोविड में वैक्सीन बनी तो ये पेटेंट, सबसे पहली बात तो इसको पेटेंट फ्री रखा गया, है ना। तो पेटेंट अगर हम बेच रहे हैं, तो ये आपने जो बनाया आप डिसाइड करोगे कि मेरे को कितने में ये पेटेंट बेचना है और कितने साल के लिए बेचना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने साल के लिए उसको बेचना चाहते हो, कितने परसेंट में बेचना चाहते हो। आप एक बार में 10 लाख रुपए लेके फ्री होना चाहते हो, या उसकी सेल जितनी हो रही है उसमें आप कमीशन लेना चाहते हो। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको और उस कंपनी को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें कितना आपस में लेन देन करना है, कितने टाइम के लिए करना है, और किस तरीके से करना है। तो तीनों चीजें आप दोनों मिलकर सॉल्व करोगे, और एक बार अगर आप अपना पेटेंट बेच दोगे और आपने 5 साल के लिए बेच दिया, तो आपका राइट उस पेटेंट पे नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उस कंपनी को सेल आउट कर दिया है। अच्छा मैम, आपने ऐसे आज कई सारे एक अच्छे एग्जांपल्स दिए, केस स्टडी दिए। तो हम्म। क्या अभी ये एक पेटेंट बेचने वाली एक प्रोपाउंडेड केस स्टडी आपके पास है क्या? यू हैव एनी आइडिया नहीं, कि? आइडिया है, पर पेटेंट एक अलग पार्ट है, और शायद मैंने अपने इसमें लिया भी नहीं है। तो अगर कभी मौका मिला तो हम पेटेंट पे भी बात कर लेंगे। और बहुत सारे मेरे पास उसपे केस स्टडी पेटेंट की है, जैसे हल्दी की केस स्टडी इंडिया के पार्ट पे
करें, बासमती की केस स्टडी है, तो बहुत सारी केस स्टडीज है, स्पेशली मेडिकल पार्ट पे तो बहुत ज्यादा अगर इश्यूज आते हैं तो पेटेंट की हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और स्टडी भी आपको बताई जा ओके, सकती है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सो मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि कुछ फॉरेन की कंट्रीज जो हैं वो भी हमारे देश में आके जीआई टैग करती हैं, तो वो कैसे होता है, मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर और वो कैसे चीजें होती हैं? प्रोसीजर सेम रहता है, लेकिन जो है, जैसे कि एग्जांपल जो मैंने आपको हाँ। दिया, प्रोसीजर सबके लिए सेम है, चाहे वो इंडियन कंट्रीज के हो चाहे वो बाहर के हो, लेकिन बस फर्क इतना रहता है कि इंडिया की जब हम एज ए इंडियन हम करते हैं तो हमें अपने कंट्री का बेनिफिट मिलता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम पर नहीं लगते हैं। लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज आके हमारे यहाँ जीआई टैग लेते हैं तो उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ और लगते हैं। तो ये अंतर है बेसिकली, बाकी कोई अंतर नहीं है। वो अपने आके अपने किसी एरिया का जीआई टैग हमारे यहाँ क्योंकि वो अपने शैंपेन का अगर कराया, जैसे मान लो फ्रांस ने, या आयरिश विस्की, तो वो नाम से पता चल रहा है कि विस्की कहाँ का प्रोडक्ट है, आयरिश का है। तो वो क्योंकि हम उनको यहाँ सेल करना है, उस विस्की को सेल करना है, तो वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए उसके साथ अपना नाम जोड़ते हैं, अपना जीआई टैग लगाते हैं, फिर उसकी जो है एक तरह से मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं। हम चाहें तो हम भी जाके ईरान में जाके, सॉरी, आयरलैंड में या फ्रांस में लाके वहां का जीआई टैग ले सकते हैं और कर सकते हैं, उनको इशू नहीं है। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई पेटेंट कराते हैं, सपोज इंडिया में, और फिर हम उसे सेल, मतलब सेल कर देते हैं, तो मतलब किसी दूसरी कंट्री में फिर उसका यूज हो रहा है, तो मतलब वहां पे कोई क्या लॉ होते हैं, मतलब दूसरी कंट्री हाँ, में क्या ये law ये होते ये हैं? बहुत क्लियर करना जरूरी है कि पेटेंट अगर हम इंडिया में करा रहे हैं तो वो पेटेंट हमारा इंडिया का ही होगा। अगर हमें पेटेंट फॉरेन में या मान लो अमेरिका में कराना है तो वहां के पेटेंट ऑफिस में हमें जो है अप्लाई करना पड़ेगा। फायदा हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमारा पेटेंट ऑलरेडी इंडिया में है, तो वो साबित करेगा कि वो हमारा ही है, तो वहां हमें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन वहां के ऑफिशियल तरीके में आने के लिए, जैसे कि इन्होंने जीआई टैग इंडिया में कराया, तो वैसे ही हमें उनकी कंट्रीज में जाकर उनके कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन और जो उनका जो भी फीस लेते हैं उसके में उसके अकॉर्डिंग करा के वहां पे पेटेंट कराना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कई जगह लिखा होता है यूएस पेटेंट नंबर, इंडियन पेटेंट नंबर, तो वो ऐसे होता है। ओके, मतलब जिस कंट्री में, मतलब अगर हमारे पास कोई इनोवेटिव चीज है अपने कंट्री में करा लिया, फिर हमें हाँ, दूसरी जहाँ हमें कंट्री में लगता भी है कॉपी कराना। हो सकता है, वहां सब जगह हमें उसको पेटेंट करवाना हाँ, चाहिए। बस जो ये है कि अब अगर हम इंडिया में पेटेंट करा ले तो उसको कॉपी कहीं और वर्ड में कॉपी तो नहीं होगा वो। लेकिन अगर उसको हमें कराना है वहां भी, यूएस में भी कराना है, तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर वो किसी एक कंट्री में है तो दूसरी कंट्री में भी कोई कॉपी नहीं कर सकता हाँ, वैसे? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अब पेटेंट सर्च में चला गया ना, तो वो कॉपी तो नहीं होगा। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। टुडे सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। आपने बहुत अच्छे से समझाया और पार्टिसिपेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। दे आर वेरी हैप्पी एंड थैंक दे यू। लर्नट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, थैंक यू मैम। and everybody is thanking you. So on the behalf of each and every participant, I am thanking you for such an informative session, and we all have learned a lot of things from you today. So thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, man. Thank you. थैंक यू So मैम। dear participants, dear participants, that's for today's session. So हेलो now, सर मैम, जस्ट सॉरी फॉर इंटर, थोड़ा डिस्टर्ब किया। नहीं था। मैडम जैसे पहले 3 दिन के सेक्शन में वो सर ने हमको पूरा गूगल पे ऑनलाइन यानी रीड कैसे करना, क्या करना, वो प्रैक्टिकल पढ़ाया था। तो वैसे ये कॉपीराइट और पेटेंट का अगर कल कल लास्ट डे है हमारे से, अगर वैसा ये प्रैक्टिकल हमको कल मिल जाएगा तो पूरा सेक्शन में मजा आ जाएगा मैडम। यानी अभी थ्योरी तो पढ़ ली है, पर वो एक प्रोसीजर अगर मान लो गूगल पे अगर एक प्रैक्टिकल मिल गया तो पूरा सेक्शन में पूरा मजा आ जाएगा और वो देखने में भी काफी सीखने को मिलेगा मैडम। ठीक है, इस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आपके फीडबैक को हम जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल थैंक फीडबैक। यू मैम। So, dear participants, on the behalf of Vital Biotech, the Agriculture Forum for Technical Education of Farmers and the Advising Committee, I convey my heartfelt gratitude to the speaker of session, Dr. Neerja ma'am, and also to the participants for being a part of this FDP and attending today's session with utmost attention. So, thank you all and have a great evening.
थैंक यू मानी मैम, थैंक यू।